Good morning. A very warm welcome to everyone. Thank you so much for taking the time out of your day to be here with us. My name is Iman Yasser. I work as a moderator here at Climantra Private Limited, and I will be guiding you through today's session. Before we begin, I just want to say we are really glad to see so many of you here today for this session on the psychology of sustainable cities, why people behave the way they do, and how cities can change behavior. Whether you are already working in environment and sustainability, or you are looking to move into this field, today's session is going to give you a solid practical foundation in why people behave the way they do and how cities can change behavior. Over the next 2 hours, we will be covering why people adopt or resist sustainable behaviors, how human psychology intersects with urban environments, and how you can apply this knowledge in real world urban settings. Before we dive into today's session, let me briefly introduce Climantra Private Limited. It is a Pakistan-based environmental engineering and sustainability consultancy committed to advancing sustainability through innovation, education, and technical excellence. We collaborate with government agencies, industries, academia, and development organizations to provide expert consultancy, ESG, climate advisory, environmental compliance services, and professional training. Our goal is not only to keep organization meet today's sustainability challenges, but also to develop the next generation of environmental and ESG professionals through practical, industry-focused learning experiences. Thank you for joining us today, and we hope this session adds valuable knowledge to your professional journey. Before we bring in our speaker, just a few quick housekeeping points so we all are on the same page. Firstly, please keep your microphones muted throughout the session. This helps us avoid any background noise. And secondly, if you have questions at any point, please drop them in the chat box. We have kept dedicated time at the end for Q&A. But feel free to add your questions as they come to mind and we will pick them later. Let's move on to the part you have all been waiting for. It's now my pleasure to introduce our speaker for today. Joining us today is Dr. Nasir Javed, an urban development specialist with more than 32 years of cumulative and diverse experience of working as a civil servant, project team lead, CEO, individual consultant, and practical hands on municipal management at the city level. Dr. Nasir Javed is working as a freelance consultant in the urban sector, focusing on climate change, circular economy, environment, municipal services, and sustainable urban development. Dr. Javed holds an MBA focusing public-private partnership in urban services, while previously had degrees in medicine, psychiatry, and law from prestigious institutions. The highlight of his career is the establishment of Punjab Urban Unit, a think and research institution in the public sector, which he headed as well for over 13 years. With this kind of experience across urban development, municipal management, public sector leadership, and behavioral insight, there really isn't a better person to walk us through the psychology of sustainable cities today. So please join me in giving a warm virtual welcome to Dr. Nasir Javed. Dr. Nasir, the floor is yours. We are really looking forward to this. Sir, you can share your screen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. Hope I am visible and audible. Yes, sir, you are. Okay, great. So if you can allow me to share the screen, I'll share the screen. But before I share the screen, I would like to say a few words as a preamble. The first thing that I want to say is that the topic for today, psychology of sustainable cities, is quite broad and deep and at times becomes technical.
However, I have tried to make it as simple as possible, not making too technical because I assume that perhaps majority of you may not be having a deep knowledge of psychology. The second point that I want to make is that a 2-hour session is too brief for me to cover the entire topic. So the kind of it's just an introductory, and my objective is to sensitize the urban planners and engineers and architects on the importance of this subject. So if that objective is achieved in 2 hours, I think I have done my job. With this, I would try to keep it short and try to make it in a way that you learn something today. And one housekeeping question, anyone who doesn't understand Urdu, and if everyone understands Urdu, I will make it a mix of both the languages. Sir, you can share your screen, please. So I'm trying to share. Is it visible? No? No, sir, it's not visible right now. Not visible. He's asking something else. It's asking to upload on some OneDrive. I'm not used to. It can't share directly. There is some technical issue. Oh my God. Oh, it is not coming. Sir, you can share your slides with us. We can share that. Okay, let me do that. I think that's the better idea. I'm sorry, you should have done it before starting. I have sent it on WhatsApp. Okay, sir. We will be sharing in just a few minutes. Okay, but before you share, I start the PowerPoint. I have a little preamble to start with, and after that, I will move to the PowerPoint. Before I start the PowerPoint, I want to highlight, in a way, introduce why are we studying the psychology of sustainable cities? इसकी जरूरत क्या है? So what comes to my question is, whenever I ask any class, anywhere I teach, that what comes to your mind when you think or talk of sustainable cities? And believe me, 99% of the time, the answer is greenery, public transport, renewable energy, circular economy, public parks, blah, blah, blah. But hardly ever the key ingredient is mentioned that we need human beings who are able to use that sustainable cities and help in making the city sustainable. In my opinion, this is a key ingredient and not an appendix or an afterthought. The majority of the projects of infrastructure in the urban areas, public awareness, behavior change communication strategies, consultations, etc., is just used as an appendage. And that is why one of the main reasons that in Pakistan, at least, and in many other countries, most so-called sustainable city projects are designed to fail. Not because the engineering is bad, but because the human beings were an afterthought. Fortunately, because of technology,
we have gotten very good at building the hardware of sustainability. Just like computer, a city is a system and it has a hardware and a software. So we have gotten very good at building the hardware of sustainability, which is solar grids, transit lines, green roofs, congestion pricing, public transport, orange line, metro, park. But we have catastrophically bad at the software. Software is the actual human beings who have to use, who have to trust, and who have to sustain these systems. It is very important that we create those human beings who use this, who trust the system, and who are able to sustain these systems. And I'm sure you would understand when the software fails, the hardware just sits there. अगर आपके कंप्यूटर की विंडोज ही करप्ट हो जाए तो बाकी जितना मर्जी महंगा एप्पल का आईपैड ले लें या जो मर्जी ले लें आप सैमसंग का, इट्स यूजलेस. So software is the key ingredient and must be as a considered factor upfront. If the hardware fails, bike lanes useless पड़ी रह जाती हैं. हमारी ऑरेंज ट्रेन अभी भी आई थिंक हाफ से 3/4 से ज्यादा अभी तक इस्तेमाल नहीं हो रही. लाहौर में ग्रीन वो बनाई गई थी फुटपाथ की, वो खाली रह गई है मोटर बाइक्स के लिए. And beautiful transit systems running there empty while traffic chokes the road beside them. We keep building cities for an imaginary rational citizen who doesn't exist and then gets shocked when the real one doesn't show up. So let us be honest about what is actually going on. Sustainability isn't failing because we lack solutions. It is failing because we have treated psychological problems as an engineering problem. And we are trying to solve psychological issues through engineering solutions. Three main reasons which actually make a sustainable infrastructure of the city non-reusable and non-sustainable. The first is rational actors. Urban planning has noticed they still design cities on the assumption that if you inform the people, you price the things correctly, pay transport kar di, discounted kar diya, and provide infrastructure, sustainable behavior follows. So this term needs to be understood, sustainable behavior, and that is precisely what the focus, a key term for today's session is. Unfortunately, people don't run cost-benefit calculations when they are using the system. They pattern match to their environment, what is happening in the environment. They copy their neighbors. They take the path of least cognitive effort. A perfectly rational bike lane means nothing. It's the irrational, deeply human pull of what feels normal, safe, and status conscious. If your model of human behavior is wrong, everything downstream of it is wrong too, no matter how many infrastructure buildings you construct. This is one reason. The second is we are quietly asking people to sacrifice for strangers and then acting surprised when they don't. Strip away the marketing language, and most urban sustainability initiatives boil down to only this one formula. We ask the people to pay a personal cost now for a diffuse, delayed, uncertain, collective benefit in the future. That is one of the hardest sales in all of human psychology. It requires trust. Trust that your neighbor is also sacrificing. Trust that institutions aren't wasting your effort. Trust that this sacrifice actually matters. Take away that trust, and no amount of infrastructure will save you. This is why identical cities, identical bike share programs, identical policies succeed in one neighborhood and collapse in the next. The concrete is the same, the trust is not, and nobody is measuring that trust. The third reason is, and this is very important, that we are building cities that make people too depleted to care. The same urban conditions we are trying to fix, noise, density, chaos, lack of green spaces,
are the ones that raise stress, damage our attention, and erode the exact psychological resources people need to think about anything beyond their next commute. We are, in effect, designing environments that exhaust people's capacity for long term thinking and then blaming them for short term choices. You cannot accuse a burned out, cognitively depleted population into caring something of the environment 50 years from today. Psychological health and sustainability are not two separate agendas, they are the same. And treating them separately is why we both keep failing. So here is my question. Girls and boys, ladies and gentlemen, please focus. Here is my real question. What if the barrier to sustainable cities was never technological? What if we had the tools for years and the actual bottleneck was always human beings? Our biases, our need for social proof, our exhaustion, our distrust of the institutions, and the distrust of each other. If this is true, then every dollar spent on sustainable infrastructure without understanding human psychology is a dollar at serious risk of being wasted. That should change how you think about every solution of green cities or sustainable cities you hear about on the subject. Because the cities of the future won't be won by better concrete. They will be won or lost by whether we finally understand the people who have to live it. This is the, in summary, what I want to discuss in the next 1 hour or so. Can I get the PowerPoint now, please? Just a hold on. Okay, I'll live with it. So what the topic is, the psychology of sustainable cities, which actually boils down to one question, and that is why people behave the way they do. And please shift only slide when I say. Let me get back to the first slide first, Sadia. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So I'm saying, let me first complete the title slide and then come to next slide. Change the slide when I say to change. And can I get these notifications coming repeatedly on new joining people? And it's technology that we have, because this disturbs my vision. Okay, thank you. So the question is that, as I have briefed earlier, summarized earlier, is that why people behave the way they do and how cities should assume or at least encourage a better human behavior. I'm sorry, this notification is all the time on my screen. I can't even see my slides. So the city is engineered, but it is operated by the people. हम बेसिकली जो है वो शहर को एक इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर की नजर से डिजाइन कर देते हैं. I can quote hundreds of examples जिसमें डिफरेंट हाउसिंग स्कीम्स बनी, जिसके अंदर मास ट्रांजिट सिस्टम्स बने, बाइक की लेन्स बनी, सॉलिड वेस्ट के बड़े फैंसी किस्म के सॉल्यूशंस बनाए गए, बट दे डिड नॉट वर्क. एंड वन वेरी कॉमन थीम दैट आई ऑलवेज सेड वाज कि हम लोगों से न पूछते थे, न उनको इन्वॉल्व करते हैं, न उनकी जो है ख्वाहिशात और उनकी जरूरियात. ट्रैफिक कंजेशन डिस्पाइट एडिक्वेट रोड कैपेसिटी, पाकिस्तान में एटलीस्ट लाहौर में इस वक्त एनफ ऑफ रोड्स हैं, शायद दुनिया के बहुत कम शहरों में इतनी चौड़ी हो. हमने ट्रैफिक सिग्नल भी खत्म कर दिए, अंडरपास बना दिए हैं, पता नहीं 20 के 25 के कितने फ्लाई ओवर्स हैं अंडरपास. इसके बावजूद अक्सर शहर में आप देखेंगे कंजेशन है. लोग ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते. जब तक ई चलान और ट्रैफिक को सेफ सिटी के नहीं लगे थे, nobody was following traffic signals, and even today, yesterday I saw. दूसरी चीज, इस वक्त
आज से कुछ साल पहले बहुत अच्छा सिस्टम आ गया था टैक्स का। अभी भी इस वक्त एक पंजाब में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है दूसरा पंजाब का, कराची में जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। इसके बावजूद घरों के बाहर भी कूड़ा है, बाजारों में भी कूड़ा है, बिकॉज पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स। मैं एग्जाम्पल साथ साथ दे देता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट या घरों से होती है जमा वेस्ट कलेक्शन, या मार्केट से होती है, या इंडस्ट्री से, या पब्लिक प्लेस से। हमने ये बहुत सालों से, पाकिस्तान बनने से पहले से ये ट्रेडिशन रही है कि सुबह सुबह जो है वो लोगों के उठने से पहले गलियों में झाड़ू लगाया जाता है, वेस्ट जमा किया जाता है, और एजम्पशन ये होती है, डिजाइन ये होता है कि जी सुबह जिस वक्त लोग ऑफिस या स्कूल जा रहे हो तो उस वक्त कहीं भी वेस्ट नजर ना आए। जिस वक्त से पिछले तकरीबन 40-50 साल से कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हुई है, शॉप बहुत, तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बन गया था कि वो शॉपकीपर्स जितने थे वो बजाय इसके कि रात को दुकान बंद करने से पहले सफाई करें और उस वेस्ट को बाहर फेंक दें, ताकि सुबह 5 बजे जब वेस्ट का वर्कर आए तो वो उसको उठा के ले जाए। सारी दुनिया में यही होता है। और जिस वक्त कमर्शियल इतना एरिया नहीं था और प्लास्टिक भी नहीं था तो ये सिस्टम चल रहा था। But every time in Pakistan, almost all cities, especially Karachi, Lahore and Peshawar, I can boast, कि जब सुबह 10-11 बजे दुकान खोलते हैं उस वक्त वो पहले सफाई करते हैं और सारा कूड़ा वो बाहर गली में फेंक देते हैं या अपने बाजार में। और वो वेस्ट वर्कर्स बेचारे सुबह जाकर एक बार सफाई कर चुके होते हैं, बाजार फिर गंदा हो जाता है। हमने उनसे बहुत दफा कोशिश की कि जी आप इस बिहेवियर को चेंज कर लें और रात को जाने से पहले जो है वो सफाई करके जाया करें। कैन यू बिलीव कि व्हाट एवरीवन सेड शॉपकीपर्स, उन्होंने कहा जी अगर रात को जाने से पहले हम दुकान में झाड़ू लगा के जाए तो दुकान में से मुफ्त जो है वो बरकत खत्म हो जाती है और अगले दिन हमारी जो है वो सेल नहीं है। आई डोंट नो ये आइडिया कहाँ से आया, किसने डाला, बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। सो व्हाट इज नाउ वी हैव टू रीडिजाइन अवर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कि ओके रेजिडेंशियल एरियाज में जो है वो सुबह 5 बजे करेंगे और कमर्शियल एरियाज में 10-11 बजे। दिस इज हाउ we did not actually, जो बाहर से गोरे आते थे उनको ये समझ ही नहीं आती थी कि जी सारी दुनिया में तो रात को वेस्ट किया जाता है, आप दिन में 10-11 बजे क्या कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड इज many a times फुटपाथ खाली पड़ा होता है सड़कों पर और लोग जो है वो इधर उधर चल रहे होते हैं, सड़क के ऊपर चल रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स many a times public spaces, the parks जो है they are not used, mostly they are used. So basically what I'm saying is that the roads, waste systems, footpaths and parks were all designed. Somebody assumed how people would behave. That assumption is where the system succeeds or fails. मैंने आपको example दे दिया। Next please. Okay. So when we design as per textbook, urban planning की जो बुक में पढ़ाया जाता है कि if there is a demand for a system, design that system, build the infrastructure and provide the service. However, a missing link is behavior, what actually people do. And once behavior starts being factored in, हमारा ये जो पूरा लूप है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड से लेके सर्विस तक, इसमें एक रिवर्स गियर भी लगता है या फीडबैक लूप उसको कह सकते हैं। एंड दैट फीडबैक लूप इज यदि आपने जो सिस्टम डिजाइन किया था उसको आपको रियल टाइम में लोगों की बिहेवियर के साथ एट टाइम अमेंड करना पड़ेगा। एंड जस्ट गिवन यू द एग्जांपल, कमर्शियल एरियाज में वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो उस तरीके से नहीं किया जा सकता जैसे एक assumption है, या जैसे टेक्स्ट बुक में है, या जैसे दूसरी बुक में, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन दैट एरिया। नेक्स्ट। ओके, तो बेसिकली a technically correct system, ये मैं वही एग्जांपल दे चुका हूँ। यदि आप वेस्ट के लिए कंटेनर्स प्रोवाइड कर दें, पीपल डंप वेस्ट बिसाइड देम। हम में से हर एक ने ये नोट किया होगा, आई एम श्योर, अगर नहीं किया तो आज कीजिए। अब किसी भी बैंक के एटीएम मशीन में जाकर देखिएगा, उसके बाहर जो है वो वेस्ट बिन पड़ी होती है, उसके अंदर इनफैक्ट जहाँ आप खड़े होते हैं वही होती है, लेकिन एटलीस्ट 50% ऑफ द स्लिप्स वो जो निकलती हैं एटीएम से वो उसके अंदर पड़ी होती हैं। नोबडी यूजेस द वेस्ट पे। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज बट वेरी ट्रू। ट्रैफिक
आप पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना दें, अभी मैं आगे एक तस्वीर दिखाऊंगा उसकी, बट पीपल डोंट यूज दैट पेडेस्ट्रियन ब्रिज। तो उससे बेहतर है कि नीचे से वो जंगला तोड़ रहे होते हैं, जंगले के ऊपर से जा रहे होते हैं। अगेन इट इज नॉट द पीपल्स फॉल्ट, ये लोगों का कसूर नहीं है, ये हमारे डिजाइन करने वालों का कसूर है, क्योंकि हमने ये अज्यूम कर लिया कि आप एक ओवरहेड ब्रिज बना दें एंड पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट। इट इज नॉट हाउ द एक्चुअल रियल वर्ल्ड वर्क। मैं इसकी डिटेल आगे देता हूँ क्यों। सेम इज द वाटर सप्लाई। अब जितना हमारे बचपन में सिर्फ 4 घंटे पानी आता होता था दिन में, 2-2 घंटे करके, एंड लाइफ वाज नॉर्मल एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब मोस्ट ऑफ द सिटीज में, एटलीस्ट इन लाहौर एंड मेनी सिटीज, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कराची या फैसलाबाद, 24/7 आता है पानी, प्रेशर भी बहुत आता है, लेकिन हम उसको थोड़ा ज़ाया कर देते हैं। रियली डोंट कंजर्व दैट वाटर। ड्रेनेज में अब वो बना देते हैं, उसको सारा कूड़ा कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द रीजन के इस वक्त जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है और जिसको क्लाइमेट चेंज के इल्जाम दिया जा रहा है, बिलीव मी कि 90% ऑफ दिस अर्बन फ्लडिंग इज बिकॉज ऑफ कि हमने जो वाटर के ड्रेनेज चैनल थे उनको ब्लॉक कर दिया है। आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, टाइम थोड़ा है, बट आप इस्लामाबाद चले जाएं जो E11 में हुआ था, एबटाबाद में चले जाएं, कराची में चले जाएं, जहाँ जहाँ जो ड्रेनेज के चैनल से हमने उसमें कूड़ा भर दिया, एंड देन वी से कि जी अर्बन फ्लडिंग होगी, क्लाइमेट चेंज आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया। नो, 90% इज दिस क्लाइमेट चेंज मेड इन पाकिस्तान। सिमिलर इज द ट्रांसपोर्ट, आप बसें प्रोवाइड करते हैं, बट पीपल स्टिल यूज कार्स एंड मोटर बाइक्स फॉर वेरियस रीजन। नेक्स्ट प्लीज। Most of the systems are not failing because of engineering, but because of behavior that people use. Now, some of the examples are some of the issues why people behave to answer the question. इसका जो सबसे कोर आइडिया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है कि people are predictably irrational. People are predictably irrational. Next, please. हाँ, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जी जो अब जिस लोगों को हम पूरा सिस्टम डिजाइन करके दें, उनको सर्विस भी प्रोवाइड कर दें, उनको एक बार अवेयर भी कर दें, इश्तहार चला दें, बैनर चला दें, जो मर्जी करना है वो कर लें, और उसके बाद जो है वो उस सिस्टम को उसी तरीके से यूज करेंगे जैसे कि हमने डिजाइन करके दिया है, जो एजम्पशन है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं होता, बिकॉज हर बंदा जो है वो ना उस सिस्टम को पूरी तरह समझता है, और उसके अलावा पीपल आर मोस्टली बिजी। पाकिस्तान में तो वैसे ही लोगों को जल्दी बहुत होती है, दे डोंट हैव द टाइम टू कैलकुलेट एग्जैक्टली कि कौन सा सिस्टम सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में। अर्बन कौन सा सिस्टम मुझे ज्यादा पसंद है। लोग अभी भी बिजली ज़ाया कर रहे हैं, डिस्पाइट इतनी महंगी है, पानी ज़ाया कर देते हैं। दे डोंट थिंक कि कल पानी नहीं होगा, दे आर बाइस्ड। बाइस्ड से मुराद ये है कि जी उनका अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर मैं पेस्ट का एक जो शॉपर है उसको गाड़ी में रख दूंगा तो मेरी तौहीन हो जाएगी, गाड़ी गंदी हो जाएगी, तो वो शीशा नीचे करके सड़क पे फेंक देते हैं। दिस इज हाउ दे आर। यू शुड ब्लेम देम फॉर all the reasons that I'm going to say. Then they are social animals. Human being is a social animal. हम देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर मेरे पड़ोसी की बेटी जो है वो गाड़ी में जा रही है स्कूल, इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस माई डॉटर कि तुम बस में चली जाओ because this is more sustainable and environment friendly and blah blah blah. She will not understand. She will say no. वो भी तो गाड़ी में जा रही है, मैं क्यों नहीं गाड़ी में जा रही? And then changing habits of the people is very difficult. जो हैबिट उनको बचपन से बन जाता है, and we hardly provide any civic education in schools. So they are predictably irrational. Irrational यही है कि आप logically कागज पेंसिल पे बैठ के एक्सपेक्ट करें, कैलकुलेट करें कि जो उनका बिहेवियर होना चाहिए, एक्चुअल रियल लाइफ में वो बिहेवियर नहीं होता। So what exactly is required? Sustainable cities need both disciplines, psychology and engineering, at the same design table. And that psychology called in afterwards to run an awareness campaign when the hardware is यूज नहीं हो रहा। ये अक्सर मैं फिर वही कहता हूँ कि साइकोलॉजी के एलिमेंट को या ह्यूमन बिहेवियर को हम एक अपेंडिक्स के तौर पर ले लेते हैं। आफ्टर थॉट, हाँ ये भी डाल दे, 1% बजट इसके लिए भी रख ले। नो, दैट हैज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्लीज।
Now there are 8 basic factors why humans behave the way they do. अगर हम इन 8 factors को समझ लें तो इनको काउंटर करने के लिए we can understand कि what to do. The first I have said bounded rationality, 2 status quo bias, 3 present bias, 4 loss aversion, 5 social proof, 6 identity, 7 is salience or visibility, and the common problem. Let me explain these one by one. Next, please. So the first, let's say here, bounded rationality and status quo bias. Bounded rationality first. What is bounded rationality is basically that people do not optimize, they satisfy. थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. रैशनैलिटी का मतलब होता है लॉजिकली रैशनल होना. सर ये जब मैं कहूँ तो उसको प्लीज शिफ्ट कीजिए, दे विल गेट कंफ्यूज्ड. तो बाउंडेड रैशनल का मतलब ये होता है कि जो एक लॉजिकली पेपर पेंसिल पर एक्सेल शीट पर आपको बताया कि जी ये एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होना चाहिए विच इज द ऑप्टिमम चॉइस. एक्चुअल रियलिटी में वो नहीं होता. कंपनीज अपना बिजनेस प्लान आती हैं कई महीने लगा के एंड दे कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग. इंजीनियरिंग में बहुत देर तक सोचा जाता है कितना डिजाइन है, कितना ट्रैफिक है, क्या कुछ है, एंड देन यू मेक द डिसीजन. अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि उसके जो सिटीजन या यूजर्स हैं वो उतनी ही डिटेल में उस तमाम फैक्टर्स को प्लस माइनस करेंगे और देखेंगे कि सबसे ऑप्टिमम सोल्यूशन कौन सा है, दे यूजुअली डोंट. सेटिस्फाइज होता है जस्ट गुड एनफ सोल्यूशन दे देते हैं. तो एक अगर थका हुआ पैसेंजर मौजूद है तो वो ये देखते रहे कि जी गाड़ी मोटर बाइक पे या टैक्सी करने पे या उबर पे मेरी कितनी खर्चा आएगा, कितनी खर्चे तो शायद इंपॉर्टेंट होता है बट कितनी कार्बन क्रेडिट सेव होंगे अगर मैं जो है वो बस में चला जाऊं या वॉक कर लूं या बाइसिकल पे चला जाऊं. दे आर नॉट एक्चुअली. रात के 6 बजे जो बंदा शाम को निकलता है उसको जल्द से जल्द घर पहुंचना होता है. अगर आप ये सोचें कि लोगों के पास इतना फालतू टाइम एंड मेंटल बैंडविड्थ है कि जिससे वो ये कैलकुलेट करें दे डोंट. दिस इज हाउ व्हाट वी कॉल कि जो उनका रैशनल बिहेवियर है ह्यूमन माइंड का वो लिमिटेड है. बाउंडेड मींस लिमिटेड. The second is status quo bias and default. People overwhelmingly stick with whatever requires no action. अगर हमारे घर में से वेस्ट जो है वो उसी तरह निकल रहा है मिक्स करके और वो बाय फेंका जा रहा है, आप उनको कहें कि जी आप इसको अपने 2 बास्केट्स में रखना है, वेरी डिफिकल्ट. जो हमारा शायद ये इंसान की नेचर है कि जो बाप दादा करते हैं हमने भी वही करना है. बट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इज कि हम जिस सिस्टम पे चल रहे हैं ना बस हम कहते हैं यही चलता रहने दो. अगर इसको चेंज करना है तो बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़े. सेम इज द केस विद पॉलीथीन बैग. हमें बहुत आसानी लगती है, मार्केट से पॉलीथीन बैग लेके आ जाते हैं. सबको पता है कि जी ये गलत चीज है, सबको पता है एनवायरमेंट खराब होती है, सबको पता है आपकी नालियां बंद होंगी. Still we do it. Whatever is the path of least resistance. मुझे पेड कपड़े का थैला 10 रुपए का मिले और पॉलीथीन फ्री मिले, I would still go for polythene bag. This is how humans behave. Next, please. Present bias, the smaller reward. This is very interesting topic, subject, factor. A smaller reward today beats a larger one later. Discounted far more cheaply than any interest-free rate calculation would justify. बात ये है कि अगर मुझे जो ह्यूमन साइकोलॉजी का ये बेसिक जैसे वो कहते हैं ना नेचर ऐसी है कि अगर मुझे आज 100 रुपए मिल रहे हैं या मुझे 2 साल बाद 300 रुपए मिलेंगे या 200 मिलेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड से कि नहीं अभी के मुझे 100 रुपया दे दे, बात की बाद में देखी जाएगी. दिस इज बेसिकली होता है कि आप उसको कहेंगे जी आज 16 लगवा दे, 3 साल तक 20 साल तक बिजली बचेगी. पीपल से आज मेरा जो है वो बिजली दे दें, मुझे क्यों अभी 10 लाख या 5 लाख या 6 लाख. तो किसी भी उस चीज के लिए जो बायस होता है ये कि जी आज का रिवॉर्ड अभी दे दे, कल की कल देखी जाएगी. थर्ड फोर्थ इज लॉस अवर्शन. ये अगेन अ ह्यूमन नेचर कि लॉस जो है वो हमें ज्यादा हर्ट करता है, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज इक्विवेलेंट गेन्स फील गुड. अगर उसको कहा जाए जी आज आपको 2000 रुपया लॉस हो रहा है तो वो उसको ज्यादा जो है वो पकड़ लेगा. तो कहते अगले 2 साल तक आप 2000 सेव करेंगे, वो किसने देखे हैं 2 साल और कब देखेंगे. सो साइकोलॉजिकली आपको
वैसे हमारी ह्यूमन नेचर भी है, मेरे अगर 10,000 रुपए गुम हो जाए या किसी की चोरी हो जाए तो उसको जितना दुख होता रहेगा, शायद अगर 10,000 कहीं से उसको इनकम हो जाए या मिल जाए तो उसमें खुशी नहीं हो. दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर. सो पीपल एक्चुअली ट्राई टू डिले एंड पोस्टपोन वॉट एवर इट इज. लॉस को जो है वो उन्होंने पकड़ना होता है. नेक्स्ट प्लीज. सोशल प्रूफ. पीपल लुक टू अदर्स टू डिसाइड व्हाट इज नॉर्मल. मतलब ये होता है कि ये अगेन दीज आर ऑल बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड नेचर जिनको हमने ज़हन में रख के सिस्टम को डिजाइन करना है. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी. अगर मेरे मोहल्ले में से 10 बच्चे जो है वो गाड़ियों पे जा रहे हैं स्कूल, मैं अपने बच्चे को कहूँ कि जी तुम बस में चले जाओ या साइकिल पे चले जाओ, वो नहीं जाएगा. उसको एक सोशल स्टेटस खराब हो जाएगा, उसको वो चीज चाहिए जो दूसरे कर रहे हैं. मैंने भी वही करना है. दिस इज बेसिक ह्यूमन नेचर. हमारा तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसी चीज पर होता है कि जैसे देख ले मेजोरिटी किस चीज में दाखिला ले रही है, हम भी वही कर लेते हैं. पंजाबी में पेड़ चाल जैसे कहते हैं. नो, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है जो मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था बहुत साल पहले. उसमें ये कहा गया था कि जी गेस्ट को ये कहा गया था कि जी आपने एनवायरनमेंट की खातिर टॉवल्स को रीयूज करना है अगले दिन भी इफ दे आर रीयूजेबल. तकरीबन 30% लोग इसको मानते हैं, 70% वो टॉवल फेंक देते हैं. फिर उन्होंने ये लिखा कि 75% ऑफ द गेस्ट इन दिस होटल रीयूज द टॉवल. अब लोगों ने देखा अच्छा अगर मेजोरिटी ये कर रही है फिर हम भी ये कर लेते हैं. और फिर उन्होंने तीसरे में किया कि जी 75% ऑफ द गेस्ट जो इस कमरे में ठहरे थे उन्होंने टॉवल रीयूज किए. अब लोगों को सोशल अप्रूवल और ज्यादा करीब हो गई. ऑलमोस्ट 10% उससे भी ज्यादा हो. तो दिस इज वेरी फेमस Cialdini's होटल ट्रायल्स कहते हैं. बट दिस इज जस्ट टू शो द ह्यूमन साइकोलॉजिकल फिनोमिना कि जो बाकी लोग कर रहे हैं. मैं अगर सड़क पे जाते आप कॉमन है, आप किसी को कहें कि कूड़ा क्यों उधर फेंक रहे हो, बाकी भी तो फेंक रहे हैं, सारे फेंक रहे हैं, सारे सड़क ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं, मैं वो उसके ऊपर से जाऊंगी ब्रिज के ऊपर से. देन आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर. पीपल एक्ट टू स्टे कंसिस्टेंट with who they believe they are. I am the kind of person who owns a car. मेरा सोशल स्टेटस यही है कि जी मैं तो गाड़ी में ही जाऊंगा, मैं बस में सफर नहीं कर सकता, मैं तो जहाज में जाता हूँ. चाहे जेब में पैसे हो ना हो, हमने जो है वो बस में जो है वो सफर नहीं करना. वॉट एवर इट इज, जस्ट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट प्लीज. ओके. Salience is visibility. What is vivid and visible is weighted far more than what is abstract, even when the abstract is larger. आपके सामने है, अगर हम उनको ये बताएं कि जी स्मॉग जो है इसमें जो है वो जो सॉरी मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ कि दिसंबर नवंबर में लाहौर में और कुछ पंजाब के शहरों में जिस वक्त स्मॉग आता है तो उस वक्त इवन द गवर्नमेंट साइड पर दिस बिकम्स एन इमरजेंसी एंड वी स्टार्ट टेकिंग ऑल काइंड ऑफ मेजर्स. मास्क पहन लेते हैं तो रेन आना शुरू हो जाती है, गाड़ियां निकल आती है वगैरह वगैरह. लेकिन हम ये नहीं देखते कि पंजाब लाहौर में एटलीस्ट एंड इवन कराची में इवन इस्लामाबाद में throughout the year there is a very higher air quality, very high risk of air quality issue 2.5 particulate. लेकिन that is not an emergency क्योंकि वो नजर नहीं आ रहा. जो चीज अभी नजर आ रही है उसके ऊपर ज्यादा हमारा शोर शराबा बढ़ जाता है. जो नजर नहीं आता वो ठीक है. हम सारा साल नालियों में ड्रेन में नालों में कूड़ा फेंकते रहते हैं, वो खैर है. लेकिन जिस वक्त अर्बन फ्लडिंग आती है तो इट बिकम्स अ न्यूज. तो विजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी नीड इन्हीं चीजों को अगर हम 8 फैक्टर्स को काउंटर करेंगे तो दैट बिकम्स द प्लान एक्चुअली. लोगों को वो चीज विजिबल करें विच इज सस्टेनेबल. एंड देन द कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कीमत मुझे पे करनी पड़े और उसके कॉन्सिक्वेंसेस सारों को भुगतने हैं या उसका फायदा सबको होना है तो प्रोबेबली वी डोंट रियली. और कॉमन एग्जांपल अगेन स्मॉग में जाए तो ये जो खेत में हम वो चावल की राइस की वो जलाते हैं, उसकी जो स्टबल रह जाते हैं तो वो ठीक है. अगर मेरे लिए तो सबसे सस्ता ऑप्शन यही है. अब अगर स्मोक चला जाता है इधर उधर तो वो पता नहीं कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो मैं कूड़ा फेंक देता हूँ सड़क पे क्योंकि मुझे आसान ये दिखता है. अब उसकी वजह से एनवायरमेंट खराब होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है, जो भी होता है, दैट इज नॉट रियली माई हेडेक. मॉरल अपील रियली फिक्स अ कॉमन. द इंसेंटिव स्ट्रक्चर इज द रियल डिजाइन प्रॉब्लम. ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ. नेक्स्ट.
This again is extremely important in human psychology and in human behavior. There is a very serious difference between the intention and action and the knowing and doing. पाकिस्तान में इस वक्त बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पता है कि जी सॉलिड वेस्ट गलियों में नहीं फेंकना, एनवायरनमेंट का पता है, क्लाइमेट का पता है, सबको पता है कि ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल फॉलो करना अच्छी चीज होती है, ऑनेस्टी इज अ गुड पॉलिसी. हाउ मेनी लोग फॉलो इट? हाउ मेनी पीपल फॉलो इट? वेरी लिटिल. उसकी वजह ये है कि पता होना और चीज है, लेकिन आपके उसके ऊपर इतनी मोटिवेशन होना कि आप उस पर अमल करें इज अ टोटली डिफरेंट. इसको एक डिफरेंट थोड़ा सा मैं लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स में जो नॉलेज है ना, उसके दो रिजर्वायर्स हैं. हार्ड डिस्क कैसे दो किस्म की है. एक रिजर्वायर आपके ब्रेन में है और एक आपके हार्ट में है. जिससे सिंबॉलिकली आप उसकी एनाटॉमी करना चाहिएगा. तो जो आपके ब्रेन में है दैट इज व्हाट यू नो. जो आपके हार्ट में चला जाता है दैट बिकम्स योर बिहेवियर. So mere awareness campaign is never enough unless you make sure that people behave the way they ought to do. Awareness campaign आप जितना मर्जी चला लें वो शायद प्रॉब्लम हल ना कर. So what you really need to make them realize, मैंने जिस वक्त I was used to be a doctor, अभी भी स्टडीज देख लीजिए, 90% ऑफ द पीपल जो 30 साल स्मोक कर रहे होते हैं, एक हार्ट अटैक होता है और 90% उसमें से स्मोकिंग छोड़ देते हैं. Because then that information goes to their heart. आप सिगरेट के ऊपर जितने मर्जी कैंसर की तस्वीरें बना लें, जिसने स्मोकिंग करनी है वो कर रहा है, लेकिन जिसको एक भी कैंसर का इंसिडेंट या उसकी फैमिली में हो जाए, स्मोकिंग छोड़ दे. तो दिस इज द डिफरेंस कि इल्म जो है वो आपके दिमाग में है या आपके दिल में पहुंचा. Once we are designing a system of psychological behavior change for a sustainable city, we have to make sure that the ilm, जो उनको knowledge है, it is not just the knowledge in their brain. We make sure that it is the intention and motivation to make a change and follow a sustainable behavior. Next, please. अब चंद एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ. इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैन लगाया गया था, 5 लाख रुपए जुर्माना था. सिर्फ चंद बड़ी बड़ी मार्केट्स में ये हुआ था, दूसरे शहरों में नहीं हुआ था. उसकी वजह कुछ ये भी थी कि एनफोर्समेंट इतनी ज्यादा वो नहीं. तो ये एक लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट, जिस वक्त फाइन एक दो लोगों को हुआ, लोग बाज आ गए. लेकिन ऑब्वियसली एज गवर्नमेंट का सिस्टम गोज, वो थोड़े दिनों में लोग भी भूल गए, हुकूमत भी भूल गई. जब लोगों ने देखा कि यार वो 7 वाली गली वाला भी प्लास्टिक बैग दिए के जा रहा है, वो मुझे सस्ता भी पड़ता है और आसान भी है, तो फिर सबने देखा देखी वही शुरू कर दिया. एंड जस्ट इन अ कपल ऑफ मंथ्स इट फेल्ड. दिस इज वेरी कॉमन एग्जांपल कि हम जितनी भी सफाई की कैंपेन चलाए, ट्रांसपोर्ट की चलाए, जो भी चलाए, वो जब तक तो उसके पीछे फुल स्केल लगा रहता है तब तक वो इफेक्टिव है. जिसमें वो नहीं होता हम उसको छोड़ देते हैं. That brings me to another very important point. अगर मुझसे पूछें तो हमारे इस सेक्टर में, टोटल सिस्टम में, सिटीज में या गवर्नमेंट में, द वर्ड कैंपेन जो है इसको बैन कर देना चाहिए. हमने इस पे कैंपेन चला दी है, हमने ये हफ्ता सफाई बना लिया है, हमने जो है वो इसके तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है. दिस इज ऑल नॉनसेंस. एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. जब सिस्टम होता है तो देन यू आर डूइंग इट एज अ प्रोग्राम थ्रू आउट द ईयर 24/7. हर चीज में ये चीज इंक्लूड करनी है. यू हैव टू डिजाइन द अवेयरनेस एंड CBCC behavior change system in such a way it does not remain just a campaign. It remains जैसे जिम में होता है, मैं अगर सारा साल जिम में ना जाऊं, चाहे हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, it becomes useless. मैं तो जो मैंने कैंपेन चलाई है, मैं एक हफ्ता पूरा जिम में जाऊंगा, उसके बाद 6 महीने छोड़ दूंगा. It doesn't work that way. So same is the issue with the human mind. Every day नए population आ रही है, नए बच्चे, नए लोग आ रहे हैं. You have to motivate them daily. So this is just an example कि आप एक कैंपेन चलाएंगे, बैन लगाएंगे, जुर्माने करेंगे, very limited effect, everything back to normal. Next, please. Slide. दूसरी चीज इवन इन कैंपेन में भी जो प्रॉब्लम आता है आमतौर पर वो ये होता है कि बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की कैंपेन चलाई जाती है.
एब्स्ट्रैक्ट कैंपेन लोगों को मोटिवेट और एक्शन कभी भी नहीं करती। फॉर एग्जांपल, हम बचपन से देख रहे हैं कि जी बैनर लगे हुए हैं, सफाई निस्फ ईमान है। अभी मोटरवे पर और बड़ी सड़कों पर लिखा हुआ है पता नहीं कौन सी ट्रैफिक जो है वो मुहज्जिब कौमों का पेशा होती है, अब सब वतीरा होती है। अब सफाई निस्फ ईमान है, वो जो बाकी ईमान के साथ कर रहे हैं वो इसके साथ भी यही करते हैं। मस्जिद के बाहर ही सबसे ज्यादा गंद पड़ा होता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस तरह की एब्स्ट्रैक्ट कैंपेन से कभी भी आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता। अगर आप कुरान में भी देखें तो डायरेक्ट बताया गया है आपने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। अगर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दिए जाए तो शायद लोग उसको फॉलो ना करते। तो दूसरी तरफ एग्जाम्पल है जो ये म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर जट्टा ने लिखी है कि जी कूड़ा कूड़ेदान में डालें। स्टॉप, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल नीड टू बी टोल्ड। सफाई निस्फी माने और ठीक है करो सफाई पे, लोग यही जवाब देते हैं। अच्छी ट्रैफिक जो है मुहज्जिब कौमों का वसीला है, तो हम तो मुहज्जिब कौम है ही नहीं, तो इसकी मेरे लिए ये नहीं है। So what is in the message for me? This is what is important. So whenever designing a campaign or a system or whatever program, you have to directly tell the citizens what to do. Next slide, please. Now, whenever we are designing, this is just to simplify and to make easily understand. There is a formula, there are 4 or 5 factors, in 5 factors practically, जो अपने हर उसके अंदर सिस्टम बिल्ड करते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हुए उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, जिसमें है इजी, अट्रैक्टिव, सोशल एंड टाइमली। अब इन चारों को जब मिलाते हैं तो वो एक एक्रोनिम बना लिया आपकी यादाश्त के लिए, विच इज ईज। ये एक यूके की है स्टडी थी 2000 आज से 10-12 साल पहले की। उन्होंने ये फ्रेमवर्क डिजाइन किया, तो इसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट मौजूद थे कि वाई बिहेवियर जो है वो लोगों का कैसे टेम करना है, उसका ये एक फार्मूला है। नेक्स्ट प्लीज। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन बाय वन। द फर्स्ट इज make the sustainable cities, make the sustainability choice as the easier option. मैं अगर कोई भी डिसीजन करने लगता हूँ रोड पे चलते हुए, शहर में, दिन में, रात में, तो मुझे जो इजीएस्ट ऑप्शन लगता है मैं वो चूज करूँ। अगर मुझे आम नॉर्मल बिहेवियर में अगर मुझे रात बहुत सख्त नींद आई है तो मैं उठ के लाइट बंद करने की तकलीफ भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर बेड स्विच लगा हुआ तो मैं उसको ऑफ कर लूँगा। दिस इज जस्ट अ कॉमन एग्जाम्पल टू ताकि आप याद रहे। तो पीपल आर मोर लाइकली टू डू समथिंग जिसमें एफर्ट नहीं है। सबसे हमारी जो बेहतरीन एग्जांपल, और आई वुड से नहीं अभी वहीं रहने देते, सबसे जो इसकी वो कहते हैं ना कि वर्स्ट एग्जांपल है इजी चॉइस की, दैट इज जब हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाते हैं, ओवरहेड पेडेस्ट्रियन। सड़क क्रॉस करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन मैं पहले आधा किलोमीटर आगे जाऊँ, फिर सीढ़ियाँ चढ़ूँ, फिर क्रॉस करूँ, फिर आधा नीचे सीढ़ियाँ आता हूँ, फिर आधा किलोमीटर वापस आऊँ। दैट इज अ डिफिकल्ट चॉइस। बाज़ औकात इसमें जैसे ईरान में मैंने देखा था, मोस्टली दे डोंट यूज ओवरहेड ब्रिज, दे मेक अंडरपासेस। तो अंडरपास इतना इफेक्टिव, इतना अट्रैक्टिव होता है बिकॉज नीचे जाने के लिए आपसे 10 फुट जाना है, ऊपर जाने के लिए 20 फुट जाना है, और वो धूप भी होती है, तो वो इतना अट्रैक्टिव और इजी कर दें कि लोग चुप करके रोड नीचे से क्रॉस कर लें। नेक्स्ट। दूसरा इजी करने का जो एग्जाम्पल है, ये मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल दिया है। मैं हैरान होता हूँ कि इस वक्त भी एज ऑफ टुडे आई कुड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 50 हेल्पलाइन जो कि पाकिस्तान में और पंजाब में खासतौर पे चल रही है। हमारी 15 है, पुलिस इमरजेंसी है, 1112 है अगर आपने वो इमरजेंसी उसको रेस्क्यू वालों को बुलाना है, 1129 है अगर डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट में याद रखें आप, हाईवे पेट्रोल 1124 है, फायर ब्रिगेड 16 है, ईडीएम 115 है, वापडा 18 है, रेलवे 17 है, हकूक खवातीन तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1043 है, और उसी दायरे की एक और हेल्पलाइन जो है वो 0800 93372 है। उसके बाद ऊपर एक और कोई है किसकी, वो 1719 डिजास्टर मैनेजमेंट, वो भी खतरे की है, 1719 है टेररिज्म से बचने के लिए। अब मैं याद कहाँ रखूंगा, 9211 एक तो कोई और है, लाइफ स्टाइल की हेल्पलाइन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कोई दुनिया का बंदा मुझे ये समझा दे कि किसी बंदे को ये 50 हेल्पलाइन के नंबर कैसे याद रहे। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल।
तो हमने बेसिकली ये एज्यूम ही नहीं किया कि लोगों ने अट्रैक्ट, वही जो 1 2 नंबर 1 5 और 1 1 2 2 याद है, इसके अलावा शायद किसी को कोई नंबर याद नहीं रहता। आई बी क्रिएटिंग दोल हैश। आजकल टेक्नोलॉजी को अब यूज नहीं करते, अदरवाइज जस्ट कीप वन नंबर। अमेरिका में कुछ मुल्कों में शायद 911 है, उसके अंदर हर चीज अवेलेबल होती है। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ रॉकेट साइंस, just keep one number 1 1 2 and everything should be linked to that. So we don't make choices easier for public, we make it difficult without thinking. अब जिसने भी ये 50 हेल्पलाइंस बनाई है, मे बी बोर हो, मुझे सिर्फ 50 मिली है, वो उसने कभी भी ह्यूमन बिहेवियर को नहीं सोचा कि जी कौन याद रखेगा इसको। उसका ख्याल है कि हम सब कंप्यूटर लेके फिर रहे हैं हर वक्त। नेक्स्ट। नाउ ईस्ट में से जो इजी था, सेकंड इज मेक द सिटी चॉइस अट्रैक्टिव। We notice things that are attractive, rewarding, or interesting. So make cycling and walking routes pleasant and visually appealing. अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान के किसी शहर में 3 किलोमीटर पैदल चलना है, फुटपाथ भी है, तो बड़ा मुश्किल है मैं रिस्क लूँ, क्योंकि कोई पता नहीं कितने गज के फासले पर एक मैन होगा, ढक्कन खुला पड़ा है और हम उसके अंदर जा के रहें। So we don't make it attractive and interesting. इसके बदले आप ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में बैंकॉक चले जाए, किसी शहर चले जाए, इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव वॉकिंग होती है कि आप कर सकते हैं। फिर लाहौर में और कराची में, हर जगह शहर में ये जो ओवरहेड ब्रिज बने हैं पेडेस्ट्रियन, इसके ऊपर जो है वो नशेई और फकीर बैठे होते हैं। ख्वातीन तो वैसे ही डरती हैं उसके ऊपर जाने के लिए, लाइट नहीं होती रात के टाइम पर। इसमें मैंने एक सजेशन दी थी जो मानेगी, मैंने कहा इस ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज को जरा चौड़ा कर दें और उसके दोनों तरफ छोटे छोटे स्टॉल लगा दें, जिसमें खासतौर पे रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की, दूसरी क्लिप, ये वो चीजें बिके। तो पीपल स्पेशली लेडीज कहेगी चले रोड तो क्रॉस करते हैं, साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाएगी, सो लेट अस गो अपस्टेयर्स। उसको लाइट कर दे, उसको ब्राइट करें तेज रोशनी में, ताकि लोग सेफ महसूस करें। तो ये अगर उसको करें तो पीपल हु आर यूजिंग वुड एक्चुअली बी मोर गोइंग टुवर्ड्स दैट। सिमिलरली जो रिवार्ड हमने एक शुरू किया था, बहुत शहरों में होता है, हमने भी इस्लामाबाद में किया था कि जी आप 6 पेप्सी की या प्लास्टिक की खाली बॉटल्स दें तो आपको एक बड़ी बॉटल मिलेगी या समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर मी टू यू। देन जो आपका सस्टेनेबल रास्ता है वो आसान हो, अगर शॉर्टकट हो, वो लंबे वाला ना हो। नेक्स्ट, सोशली सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर वही गुजारिश की जो पहले भी कह चुका हूँ, people naturally look at what other people are doing. Show residents what their neighbors are doing. Positive social norms को promote की। Communities they are saving energy or recycling को highlight की। Unfortunately हमारा सारा मीडिया, including social media, सिर्फ negative examples को highlight करता है। I personally for sure know at least 50 recycling एंड वेस्ट टू वैल्यू के प्रोजेक्ट्स बहुत सक्सेसफुल चल रहे हैं। कभी कभार कोई 1000 में से एक यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पे मिल जाता है, वो 99% ऑफ द सिर्फ गंदगी शो करते हैं, हम सिर्फ नेगेटिविटी शो करते हैं। और ग्रेजुअली होता ये है कि स्पेशली द माइंड ऑफ द यंगर जनरेशन दिस बिकम्स द नॉर्म, और वो यही सोचते हैं कि यही है जो सब कर रहे हैं तो मैं भी वही करूंगा। जो मैंने कहा, एक कॉलोनी में हम रहते थे, वहां पे हर बंदे ने बकायदा वो डोर टू डोर प्रोडक्शन का सिस्टम था। पीपल कोई सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकता था, जहाँ नहीं होता लोग इधर उधर सारे फेंक रहे, मैं भी फेंक दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ सिंपली सेइंग लाइक एग्जांपल के तौर पर प्लीज रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी यूज, अगर हम उन्हें कहें कि मोस्ट हाउस होल्ड इन योर नेबरहुड आर ऑलरेडी यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से लोगों ने सोलर सिर्फ लोगों की देखा देखी लगवा दिया है। दिस क्रिएट्स अ सटल सोशल प्रेशर टू फॉलो। So people are influenced by what they believe people like them are doing. जो दूसरे आप जैसा काम कर रहे हैं, हम कहते हैं आजकल सिविल इंजीनियरिंग का रिवाज है, उधर चले जाओ। नेक्स्ट, मेक द मैसेज टाइमली। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो लिखा हुआ ना कि कूड़ेदान के ऊपर लिखा हुआ, वैसे मोस्टली कूड़ेदान के ऊपर अंग्रेजी में लिखा होता है यूज मी। स्ट्रेंज ह्यूमन बिहेवियर को नहीं हम देखते, व्हाट इज मेंट बाय यूज मी। और एक ऐसे मुल्क में जिसमें 90% लोग शायद सही तरीके से इंग्लिश पढ़ भी नहीं सकते, हमारे 90% ऑफ द बोर्ड अवेयरनेस इंग्लिश में लिखे होते हैं। आप में से शायद कोई नॉर्दर्न एरियाज में गया हो या ये नसिया गली या यूबिया साइड पर, जितने बोर्ड लिखे हुए हैं, चाहे इंफॉर्मेशन के हैं, चाहे सेफ्टी के हैं, चाहे सारे हैं, वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं।
आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि 90% लोग जब पाकिस्तान में पढ़ी, दिस इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, लोग कर क्या सकते हैं और हम उसको देख क्या रहे हैं। एक जमाने में जब नए नए अंडरपास बने थे लाहौर में कैनाल के साथ, तो उस पे इंग्लिश में लिखा होता था और उसमें मीटर्स में लिखी होती थी अंडरपास की हाइट। बाद में फिर हमने चेंज कराया कि 3.6 मीटर्स का ये पास है। अच्छा, और वो लिखी हुई उस जगह पर थी ये वार्निंग कि 3.6 मीटर की हाइट का ये अंडरपास है। जिस वक्त ड्राइवर के पास चॉइस ही कोई नहीं होता था रास्ता चेंज करने को कि मैं अंडरपास से ना हूँ। तो अंडरपास ऑब्वियसली इजी चॉइस है, अगर आप पहले वालों में देखें तो इट इज इजी एंड अट्रैक्टिव चॉइस। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो आपने इंग्लिश में लिख दिया है, और 3.6 मीटर जो हमें पाकिस्तान में समझ नहीं आती, 11 फुट हमें समझ आ जाती। अब आप इमेजिन करें कि जो एक बाजोर से या ट्राइबल एरिया से या अफगानिस्तान से ट्रक ड्राइवर आ रहा है, उसको हम ज्यूम करते हैं कि उसको इंग्लिश भी आती है, उसकी स्पीड भी ऐसी और नजर भी इतनी तेज है कि उसको पहले पता लग जाएगा, उसको ये भी पता है कि 3.6 मीटर कितने फुट का होता है। द रिजल्ट इज कि ऑलमोस्ट एवरी वीक फॉर ऑलमोस्ट 2 years आई कैन हैव रिकॉर्ड एक एक्सीडेंट होता था। कभी बस फंस रही है, छोटे शहरों से आए होते थे स्टूडेंट्स वगैरह, और बहुत डेथ हुई थी उसके दौरान। तो व्हाट एग्जैक्टली इसके जो भी आपने मैसेज देना है उसको उस वक्त दीजिए जिस वक्त उसने वो डिसीजन करना है। मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, बट देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल सिटीज, और जो स्लाइड पे लिखा है उसको मैं थोड़ा कम पढ़ रहा हूँ। द पावर पॉइंट विल बी अवेलेबल परहैप्स, और उसको आप देख लीजिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय टाइमली मैसेज। नेक्स्ट। तो ईस्ट के लिए जो 4 स्टेप्स मैंने बताए हैं कि ये उनके अंदर होने चाहिए, इन सब के ऊपर एक कॉमन जो है वो कहें अब जैसे वो क्या कि उसको बोलते हैं ओवर आर्चिंग जो है, दैट इज द ट्रस्ट। सस्टेनेबल cities are not built only with infrastructure. They are built by understanding how people actually behave. So does the citizen believe the system will honor their effort? A household won't start waste if he suspects the truck remixes it anyway. Trust is earned procedurally. A helpline that resolves complaints in 48 hours or a truck that arrives at the same time every day is basically when people trust. अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। फिर ये डोंट ट्रस्ट के जो ये बातें कर रहा है ये सही है। हमने हर चीज में डिस्ट्रस्ट क्रिएट कर दिया है, और उसमें पार्टली आई वुड से मीडिया का भी रोल है, पार्टली गवर्नमेंट का अपना रोल है। कि क्या हम अगर बिजली की बचत करते हैं, बिजली का बिल देते हैं, टैक्स टाइम पर देते हैं, तो क्या वो वाकई उसके लिए हमारे लिए यूज हो रहे हैं या वो कहीं और। तो वो जो 4 इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बिल्ड करने के मैंने पॉइंट बताए हैं, EAST प्लस द 5th इज ट्रस्ट। बेसिकली वो जो शुरू में मैंने 8 पॉइंट बताए थे कि व्हाई ह्यूमंस बिहेव द वे दे डू, वो समझने की जरूरत है। एंड देन दिस टूल किट ऑफ 5 एलिमेंट्स, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगे इस चीज को जरूर जो है वो ध्यान में रखें। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये एक हायरार्की है कि जी आप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डिजाइन से लेके सबसे पहले चीज यही होती है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं हम, फिर उसको सर्विस डिजाइन करते हैं, कोर्स करते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं, करते करते एंड में हमने थोड़ा सा जो मैंने शुरू में कही थी कि अवेयरनेस का एलिमेंट भी रखते थे। ओके जी, लोगों को बता भी दें, एक तो वर्ड अवेयरनेस है ही गलत, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। रियली वी नीड टू चेंज इज बिहेवियर देयर। मैंने कहा सारे पाकिस्तान को पता है ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ना, सबको पता है पोल्यूशन का, सबको पता है कि एनर्जी सेव करनी है, स्मॉग क्यों है, बिहेवियर चेंज। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अवेयरनेस नीड्स टू बी रिटन इज बिहेवियर। और होता यही है कि हम नीचे से खर्चा करते करते ऊपर पहुंचना खर्चा होता है, एंड वी रियली डोंट स्पेंड दैट। नेक्स्ट नेक्स्ट जस्ट एग्जांपल है, 5 नहीं है, 4 रह गए। अगला इंडोर सिटी इंडिया का इज वन ऑफ द एग्जांपल जिसको आप जरूर स्टडी कीजिए। मैं आज से 25 साल पहले आई वाज इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसमें इंडियन सिटीज वर कोटेड एज द वर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ डर्टी सिटीज। लेकिन आज तकरीबन 20-25 साल बाद many of the Indian cities has become
very good examples of cleanliness. So it's a lesson for Pakistan. We have the same culture, same language, more or less the same society. And if Indore can do, which is a word example by the way, एक दो साल के अंदर 25th से इंडिया में एक बाय द वे रैंकिंग होती है कि क्लीननेस सिटी कौन सा है प्रॉपर, हमने भी शुरू की थी, फिर उसको पॉलिटिकल रीजन से बंद कर दिया कि 24th रैंक सिटी से वो नंबर 1 पे आ गया। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज की थी डोर टू डोर कलेक्शन, अवेयरनेस कैंपेन, नॉट अवेयरनेस बट मोटिवेशनल कैंपेन। लेकिन जो सब नेक्स्ट कीजिए स्लाइड प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया था कि अगर हमने ये कहा है कि जी गाड़ी आएगी 9 बजे तो वो गाड़ी आ जाती थी 9 बजे। नंबर 2, उन्होंने अलग अलग 2 गाड़ियां या एक ही गाड़ी के 2 पोर्शन बना दिए कि ये रिसाइक्लेबल है, ये लैंड फिलिंग के लिए है। तो लोगों को समझ आती थी जब वो विजिबली देखते थे कि आज अगर मैंने रिसाइकलिंग का अलग कर दिया है, नॉन रिसाइकलिंग अलग किया है, तो ये अलग अलग गाड़ियों में भी जा रहा है और डेफिनेटली इसकी रिसाइकलिंग होगी। एक्सक्यूज मी। आज उन्होंने घर घर जाकर ये इतनी कैंपेन की। मेरी सजेशन ये है कि अगर हमने वाकई ये चीज करनी है, लोगों को ट्रेन करना है, तो वी शुड हैव रियल गुड मोटिवेशन, जो कहते हैं सोशल मोबिलाइजर, जो घरों में जाकर ख्वातीन को खास तौर पर। एक सेकंड पिछली साइड कीजिए, बैक स्लाइड, बैक स्लाइड, ये वाली। The first waste management facility is the household kitchen. This is very important to understand कि जी अगर हम ये कहें कि जी लैंडफिल पे जितनी मर्जी बेहतरीन फैसिलिटी बना दें, अगर हमारा स्टार्ट ही गलत हो रहा है घर से, तो वो कभी भी फैसिलिटी कामयाब नहीं होगी। तो पूरा सिस्टम डिजाइन करने के लिए तो हम उस वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का जो पहली है विच इज द किचन, उस पर कितना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, रिसोर्सेज और बिहेवियर चेंज will actually reflect into what ultimately happens at the landfill site. Next please, slide. ये मैं बता दिया कि व्हीकल्स करें, कंटेनर रखें, अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, अब फाइन अनाउंस करें, फाइन करें भी सही, जितना टन रोज आप रिसाइकिल करते हैं उसको आप अनाउंस करें, पब्लिक को उसमें शामिल करें, एंड देन रिपीटेडली इस चीज को करें। This is all we can do it in Pakistan. Next, please, slide. कोरिया में इन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया था कि आप रिसाइक्लेबल जितना मर्जी दे दें वेस्ट में, उसकी प्राइस नहीं है, लेकिन जितना आप सेव कर सकते हैं उसके लिए आपको जितना आप सेव करेंगे, जितना आप वेस्ट कम देंगे, उतनी आपकी फीस कम हो जाएगी। तो दिस इज ए काइंड ऑफ इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव लोगों को दे दिया। आप अगर पैसे फीस कम लेना चाहते हैं वेस्ट की, अपने वेस्ट की क्वांटिटी कम कर दीजिए। ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर पर दो 40% तक वेस्ट सिटी लेवल पर रिड्यूस हो गया था। आई थिंक दिस इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल कि हम भी अगर वेस्ट के बेस पे कर लें। अब तो वो सिस्टम ही नहीं हमारे पास कि करप्शन हो, बट सपोज वी कैन इम्प्लीमेंट दैट और वेस्ट के हिसाब से करेंगे जी। एक थैला, कई मुल्कों में शायद अमेरिका में भी यही है कि अगर एक वो गार्बेज बैग है तो उसकी स्टैंडर्ड फीस है 2 हो जाते हैं, 2 फीस डबल हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज, स्लाइड। इसी तरह वाटर में बिहेवियर चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं, एक सिंगापुर की एग्जांपल है और एक केप टाउन। सिंगापुर में जो वेस्ट वाटर होता है सीवरेज का, उसको रिसाइकल किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है और उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है। हम गए थे सिंगापुर, जो हमारे साथ लोकल था ऑफिसर या जो भी है, उसने दिखाया कि ये हमारा वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट, और उस ट्रीटमेंट प्लांट के एंड पे जो पानी निकल रहा था उसने ग्लास में भर के कहा कि ये हमारा ड्रिंकिंग क्वालिटी वाटर है। अगरचे लोगों को इस चीज पे कन्विंस करना कि ये वाकई इसको वो ड्रिंकिंग के लिए यूज करने बड़ा डिफिकल्ट है कि जो पानी आपके बाथरूम से निकल रहा है उसको आपने ड्रिंक भी कर लेना है वापस। बट व्हाट ही डिड एक्चुअली कि उसने हमारे सामने वो ग्लास भरा और उस ग्लास में से 3-4 घूंट जो है वो पी लिया। उसने कहा, "If I can drink it, anyone can drink."
अब ये वीडियो जब मीडिया में सोशल मीडिया पे गए, दैट इज हाउ पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग ये इसके अंदर वाकई ये चीज ट्रू है। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी वो ट्रस्ट डेवलप किया और लोगों को मोटिवेट किया कि जी उन्होंने भी इस चीज का ख्याल करना है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है उसको इस लेवल पे लेके जाए और उस पूरे सिस्टम का पार्ट बने। दूसरी जो एग्जांपल इंटरेस्ट साइकोलॉजिकल है वो है केप टाउन की। आज से कुछ साल पहले 10 years ago केप टाउन में बहुत शदीद शॉर्टेज होगी फॉर वेरियस। उन्होंने अनाउंस कर बहुत कैंपेन चलाई, सारा कुछ किया, लोगों को समझ ही नहीं आती थी। फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया एक डी डे के हिसाब से। उन्होंने कहा जी फलां डेट को आपके तमाम नलकों में पानी बंद हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से पानी को यूज और मिस यूज करते रहेंगे तो आज से इतने साल इतने महीने बाद उन्होंने डेट अनाउंस कर दी, फलां डेट को आपके नलकों में पानी नहीं आएगा अगर आप इतना यूज करते रहेंगे, और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो वी कैन मूव दिस डेडलाइन टू अनदर 2-3 years, जिसमें शायद बारिश हो जाए और पानी अरेंज। इट ऑलमोस्ट लोगों ने उसको हाफ पे ले गए थे बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। लो ये आप देख लीजिए, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन पाकिस्तान। ये आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है कि जी लोग व्हाई डोंट पीपल बिहेव द वे वी वांट देम टू बिहेव। कितना खर्चा करके ये ऊपर हमने पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाया और 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बंदा क्रॉस कर रहा है वो अपनी जान पे खेल के इस नाले में उन्होंने एक फटा सा रख के ब्रिज बना दिया और यहाँ से वो क्रॉस कर रहा है। मैंने जितने ऑफिसर्स को ये तस्वीर दिखाई है सब ने यही कहा ये बेवकूफ है, ये है, वो है, फलाना है, जो है ये अपनी जान पे रिस्क ले रहा है। मैंने उससे कहा आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए कि 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, इस बंदे ने ये 10-12 किलो का बोझ उठाया हुआ है और उसने सड़क को इस जगह से क्रॉस करना है। आप एज्यूम करते हैं कि उस 42 डिग्रीज में आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर चल के जाएगा, ऊपर चढ़ेगा 25 फुट, क्रॉस करेगा, फिर 25 फुट नीचे उतरेगा और फिर आधा किलोमीटर वापस आएगा जहां से उसने रोड क्रॉस करनी थी। दिस विल टेक अबाउट 15 मिनट्स इस बोझ के साथ। तो वो क्यों करेगा? सो वी डोंट मेक द चॉइस ऑफ सस्टेनेबिलिटी इजियर, वी मेक इट मोर डिफिकल्ट। और ये जितने हम पाकिस्तान में सिग्नल फ्री कॉरिडोर के शौकीन बनते जा रहे हैं, दिस एक्चुअली इज अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी। माय अंडरस्टैंडिंग इज दिस इज अगेंस्ट। आप रोड क्रॉस ही नहीं कर सकते। अब सिर्फ ये लाहौर में जितने लोग रहते हैं दे कैन सी कि जेल रोड पर उमर हॉस्पिटल के सामने आप रोड क्रॉस करके दिखा दीजिए शाम को 8 बजे, वहाँ तो हर गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही होती है। 90% चांस है आप क्रॉस नहीं कर सके। इसमें आप देखें तो एक बंदा इधर से उधर जा रहा है और वो पीछे देखें वो इधर से इधर आ रहा है। और हम सिग्नल फ्री कॉरिडोर क्यों बनाते हैं कि जी वो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना जो है वो गाड़ी वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई आस्क दिस क्वेश्चन कि गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन में बंदा बैठा है, उसको जल्दी है कि जी मुझे रुकना ना पड़े, और उसकी कॉस्ट कौन पे कर रहा है? वो तमाम गरीब लोग जो सड़क पे 42 डिग्री टेम्परेचर में खड़े हैं या शदीद सर्दी में। उन्हें हम कहते हैं कि तुम चल के जाओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर नीचे इधर आओ, अपने ये तकलीफ बर्दाश्त करो, गाड़ी वाले को 2 मिनट रुकना ना पड़े। What is required is proper pedestrian crossing traffic signals, जहाँ पे ट्रैफिक रुक जाए थोड़ी देर के लोगों को क्रॉस कर लेते हैं, सारी दुनिया में होते हैं। बट वी मेक इट exactly opposite to human behavior because for us cities is built for cars, it is not built for people. All infrastructure is mostly built for rich people, which is the car. किसी सड़क के किनारे लाहौर में फुटपाथ नहीं है जहाँ पे आज चल सके। इवन बाजार जो है वो भी हमने हाईवेज बना। नेक्स्ट प्लीज। एक और जो चीज होती है कि हम लोगों से पूछते नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल और एग्जांपल। ये एक जीटी रोड पे बना हुआ है स्टैचू। जिस जमाने में ये बन रहा था आज से 30-28 साल पहले, तो हम वहां से गुजरे थे तो वहां पर ये उस वक्त अभी स्कैफोल्डिंग खड़ी थी और इस पे अभी बना कुछ नहीं था। तो वहाँ जो चौकीदार था पार्किंग का, उससे पूछा, मैंने कहा ये क्या बन रहा है? तो बड़े गुस्से में आ गया, कहने लगा बस पैसा जाया किए जा रहे हैं। मैंने कहा बन क्या रहा है? कहते मैंने कहा ना फालतू पैसा जाया कर रहे हैं। मैंने कहा बता तो नहीं क्या बन रहा है? कहते मेरे से कौन सा पूछ के बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा अगर मैं आपसे पूछ के बनाऊँ तो क्या करूँ इसको? उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कहा ये एक बहुत बड़ा ईगल बनने लगा है जो कि एक मॉन्यूमेंट है,
मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज है, बनना चाहिए। उसने कहा बनना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये मेन जीटी रोड है और इस पे डेली एक बंदा रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट होता है। मैंने कहा फिर, कहता है अगर मेरे पास ये पैसे होते तो मैं यहाँ पर एक लोगों के क्रॉस करने का ब्रिज बना देता जिसकी यूटिलिटी है यहाँ तो क्रॉस करने का ब्रिज कोई नहीं, तो मैं इस मॉन्यूमेंट को क्या करूँ। तो सस्टेनेबल सिटीज में लोगों को जो स्टेट पे ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उनसे पूछ लेना चाहिए उनको चाहिए क्या। वी डोंट हैव टाइम, अदरवाइज मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोगों की डिमांड कभी नहीं। नेक्स्ट, और जो चीज लोगों की डिमांड से बनेगी वो यूज भी होगी। देन डिजाइन फॉर बिहेवियर, डोंट आस्क फॉर इट। जो एक बेसिक ह्यूमन नेचर मैंने पहले कही है, आपको बताई हैं चीजें कि इजी होना चाहिए, उनकी नेचर के मुताबिक हो जो वो आसानी से कर सकते हैं। अब ये 3 एग्जांपल्स हैं। हमने भी बनाया है मेट्रो बस लाहौर इस्लामाबाद पिंडी गुलाबला। उसमें पहले ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर जाओ फिर नीचे उतरो, ट्रेवल द बस। लोग बेचारे मजबूर है, वो कर रहे हैं। ब्राजील में जब ये बनाया गया तो उन्होंने ये बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर ही रोड लेवल पर ये उसके बस स्टेशन बना दिया। आई डोंट नो कि हमें इतने बड़े बड़े प्लाजे बनाने की क्या जरूरत थी। इससे होता ये है कि लोग फुटपाथ पे चलते चलते वहीं खड़े हो जाते हैं, वहीं से बस पे बैठते हैं, वहीं से उतर जाते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। टाइम वेस्ट नहीं होता, एफर्ट वेस्ट नहीं होती, एंड पीपल आर मोर लाइकली टू यूज द बस। मैंने खुद कई दफा मेट्रो यूज करने का सोचा, लेकिन सिर्फ इसलिए डर जाता हूँ कि जितना ऊपर कौन चढ़े और फिर नीचे उतरो और उतर के फिर ऊपर चढ़ो और फिर नीचे उतरो। इट्स नॉट वर्थ इट। उससे बेहतर है बंदा टेन ड्राइव कर ले। इसी तरह से बोगोटा और कोलंबिया में उन्होंने प्रमोट करने के लिए हफ्ते में एक दिन या शायद महीने में एक दिन कार फ्री डिक्लेयर कर दिया कि इस दिन तो गाड़ी निकल ही नहीं सकती ना सड़क के ऊपर। तो विद रिजल्ट के पीपल स्टार्टेड यूजिंग बाइक बिकॉज दे फेल्ट सेफ कि आज तो कोई मोटर बाइक नहीं है, कोई कार नहीं है, हम मजे से साइकिल चलाएंगे। हम साल में एक दिन अगर ये कर लेना, जो हमारे शहर में उस दिन कोई गाड़ी नहीं निकलेगी, बहुत लोग साइकिलिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर नीदरलैंड ने भी इसे सिमिलर किया था कि आज से काफी साल, आई थिंक 40-50 ईयर्स अगो, कुछ बच्चे जो थे वो किड्स जो थे उनकी डेथ हुई थी मोटर कार एक्सीडेंट्स में। उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि डोंट मर्डर द किड्स ऑन द रोड्स, और उस कैंपेन के नतीजे में फिर बहुत सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया कि आज नीदरलैंड में बंदे थोड़े हैं और साइकिलें ज्यादा है। नेक्स्ट, ये मैं कर चुका हूँ, एक्सप्लेन हो चुका है मेरा। नेक्स्ट, इसी तरह बहुत ज्यादा जो इसकी, आई मीन डोंट जस्ट से कि जी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, कार्बन क्रेडिट, कार्बन, बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं मीडिया में और पॉलिटिशियंस भी और ब्यूरोक्रेट्स भी और इंजीनियर्स भी, उसकी बजाय अगर हम सिर्फ वो चीजें ज्यादा प्रमोट करें जो कि लोगों की इंटरेस्ट की हैं कि उसी कार्बन क्रेडिट या एनर्जी से मुझे क्या फायदा होगा, तो जैसे सेव एनर्जी कल काम आएगी, पानी भी चाहिए कल काम आएगा। कल किसने देखा है? पीपल डोंट रियली ट्रस्ट टुमारो। लोगों को आज बताइए आप बिजली कम करेंगे आपका बिल कम आएगा, दरख्त लगाएंगे ओके क्लाइमेट चेंज बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई दरख्त लगाएंगे आपको शेड मिलेगा, आपका गर्मी कम होगी। मार्केटिंग करनी अपने सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की मीडिया कंपनी जो एडवर्टाइजिंग कंपनी होती है उससे सीखी है। एंड सेकेंडली, हम एक बार वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वाले जो है वो साल में एक हफ्ता बैनर लगाकर फिर चुप हो जाते हैं। ऐसे कि पीपल नीड टू बी टोल्ड रिपीटेडली। उन्होंने कहा नहीं जी, सबको पता है कि ये कैसे होना चाहिए। मैंने कहा पेप्सी कोला का सबको पता है, कोका कोला को सब जानते हैं, उसके बावजूद बेशुमार होर्डिंग्स लगी हुई हैं और टेलीविजन पे दिन में 100 दफा नाम दिया जाता है, बिकॉज ह्यूमन माइंड ऐसा है कि चीज भूल जाती है। So we continuously need to remind people, but in a sensible and psychologically positive manner. Next, please. Right. ये एक काइंड ऑफ जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, पहले तो वो ईस्ट के फार्मूला पे बनाए या ट्रस्ट पे, और उसके बाद एक काइंड ऑफ उसको रोल आउट करने से पहले एक स्मॉल ऑडिट है जो कर ले कि डिफाइन द टारगेट बिहेवियर प्रिसाइजली। It is not increasing awareness, but the exact action by whom and by when. Number two,
map the real choice architecture by walking the citizen's actual journey in person. जो बंदा रोड डिजाइन कर रहा है तो एक बार जरा कहीं इस फुटपाथ पे खुद भी चल के देख लो, रोड क्रॉस करके देख लो, उसके बाद ये फैसला करना है कि यहाँ पे सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाना है या पेडेस्ट्रियंस को रास्ता दे देना है. Number 3, diagnose the bottleneck with a formula, capability of your motivation. इसमें से कौन सी है, क्या लोग इसको यूज नहीं कर सकते, क्या उनको मौका नहीं मिलता, आधे मोटिवेटेड ही नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट खास तौर पर. नंबर 4 वही है, ईस्ट एंड ट्रस्ट. नंबर 5 is if possible pilot small with a comparison area if at all possible. नंबर 6 measure behavior not attitudes. फिर वही बात मैं कहता हूँ कि लोगों ने किया क्या है काम एक्चुअली, and publicize the early win before scaling. जो फिर मैं कहता हूँ कि जितने पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं रिसाइकलिंग के, तुम इनको प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट प्लीज स्लाइड. Walking put attractive valid pedestrian path. Cycling make the bike parking more visible. Recycling ये वही चीजें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ. Don't tell people what they must do. Design the environment so that the better choice becomes the easier choice. सरकार लोग हमेशा आसान चॉइस ढूंढते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं, चाहे वो ट्यूशन का है, चाहे वो कोई भी चीज है. तो हमें ये चाहिए कि लोगों को सिर्फ भाषण देने की बजाय ना, जो हम उनको ऑप्शन दे, चाहे वो ऐसे बताएं कि जो इजियर ऑप्शन है, जो हम चाहते हैं कि लोग अडॉप्ट करें, उसको आसान कर दीजिए, उसको मुश्किल न कीजिए. पेडेस्ट्रियन ब्रिज एग्जाम्पल दिया आपको. स्लाइड. Last slide है perhaps that we design cities design behavior, and behavior designs the future city. This is basically a loop with a feedback system. हम पहले सिटी डिजाइन करते हैं, उसके बाद सिटी डिजाइन बिहेवियर. अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया है कि आप जितना मुश्किल बनाएंगे लोगों को क्रॉसिंग रोड, वो उतना उसमें से शॉर्टकट ढूंढ लेंगे, वो खुद ढूंढ लेते हैं, लोगों को पता होता है कैसे ढूंढना. आपके सामने एग्जाम्पल. एंड देन दिस जो भी बिहेवियर होगा उसके हिसाब से आपको फ्यूचर सिटी डिजाइन करनी है. So I repeat this loop, build the city. Existing cities में अगर आप देखना चाहें, study the existing cities कि कैसे डिजाइन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं. And once you have seen that, design the future cities according to, make sure that people behave the way you want them to behave. So this is a continuous improvement process. It is not something कि एक बार जो हमने चीज बना दी है बस वो बन चुकी है. Next please slide. I think this is the last slide. ये मैंने for the participants चंद articles जो मैंने यूज किए थे, but many others, ये अगर देख लें तो they can find time and interest, तो ये मैंने हाईलाइट करती हैं, इनको आप जरूर देखिए. Next slide please. Thank you very much. Give me 1 minute break only. I'll be right back, please. And then we can talk about the question and answers. Ma'am, kindly stop sharing your screen so that I can share mine. So we will be having our Q&A session in a minute, so please wait for a while. In the meantime, ईमान अगर आप इसको गैलरी व्यू को हाईलाइट कर सके ना, तो ये स्लाइड की जरूरत नहीं है. I think उससे बेहतर होगा if I can see the audience and they can see me and I can see the full audience. Yes, I am back. Let's go for the questions. Okay. Thank you, everyone. We have now reached the Q&A session.
If you would like to ask a question, you can either raise your hand or we will invite you to speak one at a time, or simply drop your question in the chat. I will read your questions and Dr. Nasir will respond to them live. If there are no You questions, can raise your hand, please, if you have any query. Okay, so our first question is from Muazzam Tool. So please, ma'am, unmute him so that he can ask. Assalamu alaikum warahmatullah. Muazzam Ali Toor, CEO of Capital Engineering Corporation from Islamabad. Dr. Nasser, thank you very much for your nice presentation. Before I go to my question, एक अर्ज ये है कि हमारे यहाँ ये जर्नल ऑनलाइन का जो कल्चर आया है, इसमें खुद एक लर्निंग सस्टेनेबिलिटी का इशू है कि वन वे कम्युनिकेशन 1 घंटा तक ह्यूमन साइकोलॉजी जो हमने पढ़ी है 5 to मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद ह्यूमन माइंड स्लीप हो जाता है अगर वो इंटरेक्ट ना करे। और हमारी यूनिवर्सिटियों में भी ये होता है कि टीचर विदाउट लुकिंग एट द एब्जॉर्प्शन लेवल के बच्चे कितना इनहेल कर रहे हैं टैग क्वेश्चन नहीं करते कि 2 मिनट की बात करने के बाद फौरन अटैक करें सबसे पिछले वाले बच्चे से, मिडिल से, फ्रंट वाले से कि जो मैंने कहा है क्या कहा है, तो ही कैन क्विकली रियलाइज कि उसने कितना डाइजेस्ट किया है। इंटर्नशिप में हमारे पास बच्चे आते हैं 4-4 साल की डिग्रियां की होती हैं और किसी एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। कमिंग टू माय क्वेश्चन, बहुत अच्छी आपने सस्टेनेबल साइकोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल सिटीज की बात की है। इसमें कोई पैराडॉक्स सिचुएशन नजर आई है क्योंकि आपने ज्यादातर वही और आप कहा है, जबकि 99% जो आपने मिसालें दी हैं दे आर लिंक विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। आपने 5-6 केस स्टडी किए, मैं भी आपको 2 दे देता हूँ, दुबई का और जापान का। एक तो बिल्ट इन ये मैनेजमेंट, बिहेवियरल एडजस्टमेंट, ट्यूनिंग और सफाई और कचरे की मैनेजमेंट। जापान में एक वाइस चांसलर और प्रोफेसर और बच्चा तीनों मिलकर स्कूल साफ करते हैं डे 1 से। यहाँ हमारा उस्ताद समझाते कि हमारे से बड़ी दुनिया में चीज ही कोई नहीं, और स्टूडेंट समझता है मुझसे ज्यादा पावरफुल बंदा ही कोई नहीं। तो एक तो सिलेबस के अंदर बिल्ट इन करना है इस बिहेवियर को, सफाई को और सस्टेनेबिलिटी को और बिहेवियरल को, नंबर 1। नंबर 2, 99% प्रॉब्लम रेस्ट विद द गवर्नमेंट। आपने बैग्स की मिसाल दी कि गवर्नमेंट ने किया और वाकई उसका फर्क पड़ गया, लेकिन हुआ क्या, वो एक बंदे की गवर्नमेंट की एक ख्वाहिश थी वो हो गई, दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसकी प्रायोरिटी कुछ और है, वो उसको क्रैश कर देगी। तो हमारा ये एक्चुअल एड्रेस, आपने वही का यूज किया लफ्ज और आपका यूज किया, ना उसमें वही का कोई रोल है ना आपका रोल है। हम जो नुमाइंदे बनाते हैं वो भी रबड़ स्टैंप होते हैं, असल है इनकम्पिटेंट एंड करप्ट ब्यूरोक्रेसी व्हिच इज रनिंग दिस कंट्री रुथलेसली। तो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम पाकिस्तान के बनने से आज तक है। मैं पाकिस्तान में बचपन में रहा हूँ, वहां भी सरकारी म्यूनसिपैलिटी की खातून आती थी, नॉक करके ले जाती थी कचरा। और आज इस्लामाबाद में रहता हूँ 30 साल से, हमेशा नॉक होता है, झाड़ू वाला आवाज देता है जी कचरा ले आओ, और हम दे देते हैं, कोई नहीं फेंकता। जितनी मिसमैनेजमेंट हो रही है वो सरकार की तरफ से हो रही है। सबसे गंदा जुमा बाजार G11 का, टूटी हुई सड़कें हैं क्योंकि वहां ऑफिसर नहीं और उनके बच्चे बेगमात नहीं आती। सारा गंदा कचरे का मारा, आप हैरान रहे, कभी वीडियो बनवाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस्लामाबाद में जुमा बाजार इतना खंडर हो सकता है। तो सर इसमें मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रेस ही शुड हैव बीन द क्लियर इन द क्लियर कम्युनिकेशन द पॉलिसी मेकर एंड द गवर्नमेंट। करप्शन इस हद तक है कि जो सामने, अब ये कचरे की बात है, हजारों टन हर शहर में पड़ा हुआ है। ये इतनी हमारी 270 यूनिवर्सिटियां होगी, सारे टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, एक सॉर्टर नहीं बना सके 24 करोड़ की आबादी के 4000 टीचर और 2 लाख स्टूडेंट। ये बेंगलोर की लड़की है, 2 किलो से स्टार्ट किया उसने, 20 टन पर आवर पे सॉर्टर लेके आई है। यानी वो 4 डस्टबिन 5 डस्टबिन, तो इम्प्रैक्टिकल बात है, ना औरतों को किसी ने समझाना है ना उन्होंने समझना है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के लिए डुएबल चीजें हम तो वो भी नहीं कर रहे। पीपल के टैक्स से इनके बच्चे फॉरेन स्कूलों में जाके पढ़ते हैं, इनके पासपोर्ट बन जाते हैं, ये उधर यूरोप चले जाते हैं। उसी पैसे से आप उसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे एक बिजली को वो लगा दें, एस्केलेटर क्यों नहीं लगा सकते? यही हाल स्टेशनों का, इतनी करप्शन है, अरबों रुपए, 1 अरब रुपए रोज की सिर्फ फ्यूल में करप्शन हो रही है रेलवे में।
लेकिन वो रोड़ी में, लाहौर में, सक्खर में, इधर उधर पिंडी में, वो कहीं ओवरहेड ब्रिज के ऊपर वो एस्केलेटर नहीं लगाएंगे, पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। तो द कोर थिंग ऑफ द साइकोलॉजी, और इसमें जो सबसे अहम चीज जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ वो साइकोलॉजी के हवाले से, वो ये है कि व्हाई द टाउन गो टू घोस्ट टाउन इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी। ह्यूमन बिहेवियर, अमेरिका की बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी अब स्टेट घोस्ट स्टेट बन रही हैं, बहुत सारे अच्छे नेचुरल एनवायरनमेंट और अच्छी मैनेजमेंट होने के बावजूद, बिकॉज उन शहरों में रहना इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहा, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग वर्सेस कॉस्ट ऑफ अर्निंग वो उसमें मिसमैच हो गया है। तो इस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सस्टेनेबल साइकोलॉजी ऑफ सिटीज, कि वहां पे इकोनॉमिक, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द मेनी अदर पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिक वायबिलिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जिन चीजों का, दो चीजों का आपने जिक्र किया, कचरे का या वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इट हैज टू डू विद द मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इनकॉम्पिटेंट टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, कि आज तक एक हम कचरा सॉर्टर नहीं डिजाइन कर सके। जजाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। Muslim sir, thank you very much for your comment and question, and let me respond to it as per my understanding. पहली बात जो आपने कही है कि जो ऑनलाइन का ये फॉर्मेट गलत है, आप मैं 100% एग्री करता हूँ, और मुझे जो कि बताया यही गया था कि ये फॉर्मेट है। अदरवाइज मैं ऑनलाइन में भी हमेशा इंटरेक्टिव की कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो क्वेश्चन हैं उसके जवाब देते रहे, तो उससे एक इंटरेस्ट बरकरार रहता है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वाज टोल्ड कि ये ऐसे करना है, तो मैंने उसको ऐसे कर। लेकिन आई फुली एग्री कि ऑनलाइन की जरूरत ही कोई नहीं, ऑनलाइन से वो मजा कभी भी नहीं आता जो इन पर्सन होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि इस वक्त ये हमारे टाइम और डिस्टेंस की वजह से ये फॉर्मेट अडेप्ट करना पड़ा, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपने कहा जी सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, वो बिल्कुल पार्ट होना चाहिए, और वो उसकी भी एक बदकिस्मती यही है हमारी कि जी हम एज पेरेंट्स भी गवर्नमेंट के, मैं अलग अलग रख देता हूँ, पेरेंट्स एंड सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। सारी दुनिया में आप अगर जापान में रहे हैं और किसी और अच्छे मुल्कों में रहे हैं, तो शुरू के 5 साल बच्चों को होमवर्क, क्लास वर्क, एग्जाम और ट्यूशन में नहीं डाला जाता, उनको सिविक सेंस सिखाई जाती है। उनको ट्रैफिक पे लेके जाते हैं, वो सिखाते हैं, उनको जू में लेके जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि सुबह मैं देख रहा था हमारी सोसाइटी के वेबसाइट पे था कि जी एक 3 साल के बच्चे के लिए बहुत कॉम्पिटेंट ट्यूटर की जरूरत है। I mean, we start teaching them, पता नहीं ये कौन सी पीएचडी करनी है बच्चों ने, 3 साल के बच्चे जाकर जो है वो उसमें से 3 गुना भारी बस्ता ले रहे हैं। तो दिस इज अगेन नॉट जस्ट द गवर्नमेंट फॉल्ट, इट इज द पीपल्स फॉल्ट एज वेल, कि वो ये देखें कि जी हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है। हम सिर्फ एक वो रटेबाज बनवा देते हैं और कुछ नहीं बनाते, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा जी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आई 100% एग्री कि जी आपकी बात दुरुस्त है। पॉइंट इज कि ये जो ऑडियंस है मेरी, ये गवर्नमेंट नहीं है। मैं जिस वक्त स्टाफ कॉलेज में को सेक्रेटरीज को पढ़ाता हूँ, तो मैं यूज अ डिफरेंट टोन एंड आई यूज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड अ डिफरेंट उसका जो कॉन्टेंट होता है। मुझे पता था कि यहाँ पर जो मैंने पूछा था कि यंग ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग हैं, तो आई मेंडेड अकॉर्डिंगली कि हम क्या कर सकते हैं। तीसरी चीज सबसे ज्यादा जो है, दिस कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, शहरी की जिम्मेदारी कोई नहीं है, आई थिंक दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग। मैं आपको इतनी एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जी जिस वक्त लोग खुद जानते बूझते नालों में कचरा फेंक रहे हैं और पता भी सबको है, तो आपके ख्याल में हर बंदे के पीछे गवर्नमेंट सिपाही लगा दे? तो लोगों ने खुद कचरा फेंकना है सड़कों पे, खुद ही जो है वो। अब एटीएम पे गवर्नमेंट तो नहीं खड़ी, कैमरे भी लगे हुए, लेकिन लोग फिर उसमें पर्ची नहीं डालते। तो 100% गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कोई नहीं। सारी दुनिया में सिटीजन जब तक कोऑपरेट न करे, नहीं पॉसिबल। गवर्नमेंट का, अगर आप वेस्ट की बात करते हैं, किसी भी शहर में, दुनिया के किसी शहर में 1000 सिटीजन के ऊपर एक सैनिटरी वर्कर होता है। अब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये 1000 बंदा 24 घंटे अपनी मर्जी से गंद फैलाया जा रहा है, घर में, सड़क पे, पार्क में, दफ्तर में, एटीएम मशीन में, बाजार में, और एज्यूम ये करते हैं कि एक सैनिटरी वर्कर अगले दिन आकर उसको साफ कर लेगा। वो नहीं पॉसिबल। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये लेक्चर का फोकस मैंने शुरू में डिजाइन कर बता दिया था कि दिस इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग्स्ट द यंग ग्रेजुएट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन सस्टेनेबल सिटी। सारी दुनिया के मसाइल मौजूद साहब 1.5 घंटे में हल न करने से, करप्शन से लेकर वो सारी दुनिया के बंगलौर की लड़की तक,
जहाँ तक आपका सॉर्टर का तल्लक है, ये भी गलत है। पाकिस्तान में कम से कम 20-25-30 सॉर्टर लगे हुए हैं और बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी के लगे हुए हैं। बट अगेन द सेम थिंग, दे आर जस्ट पायलट, अब वो पूरे शहर को कवर नहीं कर पाते एंड मोस्टली वो लोग पहले इतना गंद कर देते हैं कि वो पूरा नहीं हो पाता। और जहाँ तक इकोनॉमिक वायबिलिटी वगैरह का तल्लक है, तो ऑब्वियस क्या है, अंडरस्टैंड दोस्त हैं, पर जिस सब्जेक्ट जो आज का टॉपिक है उसमें इतने कवर नहीं हो सकते। तो मैं आपसे एग्री भी करता हूँ और थोड़ा सा उसे इख्तलाफ भी करता हूँ। इसको पूरे इस पर्सपेक्टिव में अगर आप थोड़ा क्रिटिसाइज करें। थैंक यू वेरी मच मौलवी साहब। नेक्स्ट। Okay, so our next question is from Ijaz Ahmed. So please unmute him so he can ask. चलो जी, बंद करिए इसको। Okay. Ijaz Ahmed, you can ask your question, please. Ijaz, you can unmute yourself. You can ask. So it's possible that his query might be addressed. So the next question is from Shahid Ahmed. अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले आपने एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात की थी, तो अगर हम स्टबल बर्निंग की बात करें तो फार्मर्स को हम इलिटरेट कहते हैं। आई एम फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, और अगर सबसे पहले बात करें तो जो स्टबल बर्निंग है वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो गवर्नमेंट लेवल बेस्ड है वो नहीं है, और उसकी एमिशंस भी जो है वो लेस देन 10% है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो मोर देन 80% जो एमिशंस हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रही हैं, और उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं, जिसमें हमारी ईवीज हैं, या हम उस पर जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स देते हैं, हमारे पास यानी कि उसका अल्टरनेट भी मौजूद है जो कि 80% से ज़्यादा एमिशंस कर रही हैं, और हम फिर भी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको टारगेट करते हैं और उनको इलिटरेट कहते हैं। तो आई थिंक उसके पास हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है उस तरह से। तो आई थिंक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आई 100%, 110% एग्री। मैंने फार्मर को वैसे कहीं भी इलिटरेट नहीं कहा। मैंने उनको कहा कि वो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, क्योंकि उसको पता है कि बर्निंग जो है ये मेरे लिए इजीएस्ट मेथोडोलॉजी और चीपेस्ट मेथोडोलॉजी है टू गेट रिड ऑफ दिस नॉनसेंस। और हमने, अगर हुकूमत ने करना है सिर्फ छापे मारना, पर्चे करने से काम कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप हर फार्मर के ऊपर एक स्पाइक खड़ा कर दे। यू क्रिएट द इंसेंटिव स्ट्रक्चर इन सच ए मैनर कि उस किसान को ये लगे कि मेरे लिए ये अल्टरनेटिव विच इज सस्टेनेबल, इज इजियर, चीपर और मेरे लिए इक्वली फायदेमंद है, पीरियड। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का तल्लक है, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगेन वही थिंग, rather than doing anything enforcement सिर्फ उसको इंसेंटिव क्रिएट कर दे, और वो गवर्नमेंट ने कर दिया। बिजली इतनी महंगी कर दी है, 80% सोलर लग गए हैं। अगर आप सिर्फ क्लाइमेट चेंज की खातिर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते, किसने भी नहीं लगाना था। जब पेट्रोल इतना महंगा हुआ, आप ईवी, तीसरी ईवी नजर आ रही है आपको। तो दिस इज प्रिसाइजली माय व्यू पॉइंट, माय होल फोकस ऑफ टुडे इज कि ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी को जरूर मद्देनजर रखें in any intervention that we do, period. Thank you. Okay, so our next question is in the chat box. Sir, please answer. How do we know whether a behavior change intervention, such as better public transport or cycling infrastructure, is actually changing people's long-term behavior rather than just temporarily influencing their choices? लॉन्ग टर्म पे जो है वो तो आपको लॉन्ग टर्म में पता चल जाएगा। अब मेट्रो बस पंजाब में, लाहौर में जो है, इसको 12 साल हो गए हैं कि 14 साल, तो वो 100% अभी भी यूज हो रहा है, पहले भी यूज हो रहा है, ऐसे सस्टेनेबल। बहुत सी चीजें जो है वो खुद बहुत विदर आउट हो जाती है। तो पहले प्रिडिक्ट करने के लिए तो मैंने आपको फार्मूला दिया है, उस टूल किट के हिसाब से देख लीजिए कि अगर तो वो 8 पॉइंट पूरे हैं तो प्रोबेबली इट विल बी सस्टेनेबल, अदरवाइज देयर इज नो
एक्सेल शीट जिसमें भर के आप प्रिडिक्टेबिलिटी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और उसमें फिर भी मैंने चॉइस दिया है कि इफ इट इज पॉसिबल, आपको बिल्कुल ही कोई नई चीज करना चाहते हैं तो स्टार्ट एज अ पायलट, consult the people if they want what they want to build, and then start as a pilot, and then see the results and then scale. Thank you. So there is someone with the name AI. You can go with your question. Ma'am will unmute you. AI, you can ask your question, please. AI is artificial intelligence. So I am moving towards the next question from Mohammad Junaid. How much should urban planners rely on behavioral data when designing public spaces and transportation systems? Can you repeat, please? How much what? How much should urban planners rely on behavioral data when designing public spaces and transportation systems? देखिए जी, सिर्फ एक डाटा की बेसिस पे तो शायद कुछ भी नहीं होगा। इट हैज टू बी ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, जो मैंने इतनी 1.5 घंटे में बताया। आई थिंक दीज ऑल फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर्ड। किसी एक डाटा की बेसिस पे एक एलिमेंट तो उसका कवर हो सकता है, लेकिन वो डाटा जो होता है वो बहुत यूजफुल भी होता है और एट टाइम फॉर डिसीविंग भी होता है, because every data, especially in regards to human behavior, has to be seen in the context of that society and that infrastructure. It cannot be an absolute number कि जी आप इस number को use कर लें तो बस आप समझ आ जाएगी. This is my understanding of the question for that. So, Next. Ijaz Ahmed, you can unmute yourself and go ahead, please. You are allowed, Ijaz. You can ask the question. So again, Muhammad Junaid has a question. How can we distinguish between predictable irrational behavior and behavior that is simply caused by poor urban design? देखिए जी, जो मैंने कहा था कि प्रिडिक्टेबल इरेशनल बिहेवियर है, वो दैट इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन साइकोलॉजिकल फिनोमिना। वो किसी एक सेक्टर के लिए, किसी एक चीज के लिए ऐसी कोई उसमें चीज नहीं है। आप बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, इवन देन ह्यूमन बीइंग आर बाउंड टू बिहेव इरेशनली। और उसकी वजूहात है जो मैंने पहले बताई है कि उतना उस वक्त उनके पास ना डेटा होता है, ना उनके पास इतना टाइम होता है, ना उनके पास वो टूल्स होते हैं, ना उनके पास उतनी इंफॉर्मेशन होती है, ना शायद उनकी उतनी हर की इक्वल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि बैड इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका जो इरेशनल बिहेवियर है ह्यूमंस का, वो वर्सन हो जाता है। तो नहर के किनारे अंडरपास है, आपने उसको डिजाइन ही कर लिया गलत, चले सही भी कर लिया, 3.6 मीटर ही उसकी हाइट है, लेकिन उसका कम से कम जो साइन बोर्ड लगाना उसको 100 गज पीछे तो लगाएं जब ड्राइवर के पास चॉइस हो, उसको उर्दू में तो लिखें। इरेशनल बिहेवियर जो है वो हमारे प्लानर्स और इंजीनियर्स का ज्यादा है हमसे।
कि वो इंग्लिश में लिख रहे हैं कि जी ऑफ दिस क्लियरेंस ऑफ अंडरपास 3.6 मीटर। अब वो एक अफगानिस्तान या बाजोर से ड्राइवर आया, उस बेचारे ने तो कभी जिंदगी में एबीसी नहीं पढ़ी, अलिफ पे नहीं पढ़ी, एबीसी तो दूर की बात है, वो तो पश्तो बोलता है सिर्फ, आप उसको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इरेशनल बिहेवियर मुझे लगता है इंजीनियर्स का भी है हमारे यहाँ। तो दीज आर टू सेपरेट फिनोमिना एंड बोथ कैन ओवरलैप। एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड ह्यूमन उसकी रैशनैलिटी होगी, और अगर जो बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर और मल्टीप्लाई हो जाएगा इफेक्ट। So the next question is from me and Nasir. Don't tell people what to do, design an environment so that people use them. And this statement was said by Dr. Nasir, as he mentioned. So keeping this in mind, government provided separate bike lanes for people to use, but bikers don't use. So who should be blamed for that? दोनों ब्लेम करने चाहिए। अगर तो बाइकर्स लेन इतनी इजी, इतनी यूजर फ्रेंडली है कि बाइकर्स जो है वो दे प्रेफर कि जी मैं ये रास्ता अडॉप्ट करूँ, तो फिर तो ठीक है। अगर आपने बाइकर्स लेन सिर्फ थोड़े से अरसे के लिए, एरिया के लिए बनाई है जस्ट एज अ शो पीस, तो उसको लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वो अगर 400 सड़कों पे आ रहे हैं बगैर बाइकर लेन के, और उन्हें कहना कि ये 4 किलोमीटर पे आप इसमें आ जाए, तो प्रोबेबली दे आर नॉट लाइकली टू यूज, उनको ट्रेन करना पड़ेगा ना। और इसी तरीके से बाइकर्स का जो प्रॉब्लम है नॉट इन पाकिस्तान, मैनी कंट्रीज में इट इज ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि जब उस पे क्रॉसिंग पे उन्होंने राइट टर्न लेना होता है, तो वो बाइकर्स ने तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती है, वो फिर उसके आगे से क्रॉस करते हैं। तो दिस इज अ डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जिसको हल भी करना चाहिए। बट एज आई सेड कि किसी एक फ्रीक का एलिमेंट नहीं है, ताली दोनों आंखों से बचती है, दोनों का कसूर है। और वो कसूर की फिर लॉन्ग रीजन भी हैं कि हम बचपन में लोगों को पढ़ाते ही, समझाते ही नहीं है कि ये चीजें फॉलो करनी होती है, और जब वो फॉलो करते हैं, उनको पढ़ा भी देते हैं, तो वो बस सिर्फ दिमाग में ही रह जाती हैं, उनके दिल में नहीं घुसती। Okay. So the next question is from AI. How we can engage politicians in our project for ownership? पॉलिटिशियंस को पहले तो खुद पढ़ाइए, उनको समझाइए, और उनके जो इंटरेस्ट है वॉट एवर दैट इज, उस इंटरेस्ट के अंदर रहते हुए कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन कर सके। हम करते क्या है कि जी हम एक एट ए टाइम सबसे पहले जो है वो सबसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। हम उनको सबसे पहले करप्ट कहना शुरू कर देते हैं, बेईमान जाहिल सब कुछ कह देते हैं। वो कहते हैं अच्छा अगर हम ये है तो है ही सही। वी शुड एक्चुअली एंगेज ऑल स्टेक होल्डर्स। जो इंजीनियर्स और पॉलिटिशियंस है वो आवाम को जाहिल कहती रहती है, आवाम जो है पॉलिटिशियंस को चोर कहते रहते हैं, पॉलिटिशियंस जो है वो ब्यूरोक्रेसी और इंजीनियर्स को नालायक कहते रहते हैं। इफ दिस ब्लेम गेम कंटिन्यूज इट इज अ विशियस साइकिल। तो हमें खुद भी पहले माय अंडरस्टैंडिंग इसके साइकोलॉजी इज सब्जेक्ट के जो शायद सबको पढ़ाना चाहिए प्राइमरी क्लास से लेकर उसकी इस्तात और स्टेज के मुताबिक, बिकॉज दिस इज बेसिक। You are dealing with human beings. You're not dealing cities. City is actually not for roads and infrastructure. It is 120 million people or whatever जितने भी हैं। Okay, so the next question is from Uruj Fatima. In Pakistan, citizens blame the government for environmental problems, while the government expects citizens to change their behavior. How can psychology help break this cycle of blame and create a shared sense of responsibility for building sustainable cities? I think अभी लास्ट क्वेश्चन के जवाब में बिल्कुल इसी चीज को आंसर किया है कि everyone has to play his or her role. हम पॉलिटिशियंस एंड ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेट इज अ बिग जो उसमें इंटरफेस है, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को अगर इसी चीज पे ही सपोर्ट करते रहे और उनकी तालियां बजाते रहे कि जी उन्होंने को पायलट कर लिया, उन्होंने ड्रामेबाजी कर ली, उन्होंने बैनर लगा दिए, काफी हो गया, तो ऐसे नहीं है। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर्स, प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, they also need to play perhaps a bigger role because they are educated. They should not misguide the politicians. और कई बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स भी अगर आप देख, मैंने एग्जांपल दी अभी कि शुमार हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ई बाइक यूज होना शुरू हो गई हैं, आपके सामने ही है तरफ। So it is not that complicated, and it is complicated as well. But we really need to use the human psychology
to design infrastructure. Thank you. So Miran Nasir has a question that, sir, as you said earlier, to increase the pedestrian bridge width and put small stalls for shopping purpose in order to motivate people to use the pedestrian bridge. If the government is not listening to urban developers and designers like you, then what is the ultimate solution? मुझे समझ नहीं आई कि क्या कह रही है. What is the question? The question मतलब is है that you suggested to increase the pedestrian bridge width and put small stalls for shopping purpose in order to motivate people to use that walking bridge. If government is not listening to urban developers and designers like you, then what is the ultimate solution? इसका क्या जवाब हो सकता है? अगर गवर्नमेंट लिसन करती तो मैं तो 25 साल से बोले जा रहा हूँ ये चीजें. बहुत सारी चीजें हो भी उनमें से, लेकिन ऑब्वियसली टेक्स टाइम. एक्चुअली एजुकेशन लेवल का बहुत बड़ा फर्क है, और एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो इस मुल्क का है वो अंग्रेजी लैंग्वेज है. 90% ऑफ लोगों को ये चीज़ों की समझ ही नहीं आती जो हम ब्यूरोक्रेट्स और इंजीनियर्स और पॉलिटिशियंस बोलते रहते हैं. लोगों को तो समझ ही नहीं आती. दे आर नॉट इन्वॉल्व. आप कितने लॉ, कितनी किताबें, कितने मास्टर प्लान उर्दू में, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कितने लोगों ने लॉ का मास्टर प्लान पढ़ा है, उनको अंग्रेजी आती नहीं है, जिनके लिए लिखते हैं आप. तो इसलिए मैं आप उसको क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत फंडामेंटल इश्यूज हैं. बट एज आई सेड अर्लियर, हर फंडामेंटल इशू, दुनिया का हर मसला जो है वो इसे 1.5 घंटे में हल नहीं किया जा सकता. आई हैड टू रिमेन एक फोकस रहना मजबूरी है. एंड आई थिंक वी शुड बी फोकस्ड. आज के सब्जेक्ट को उसके हवाले से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन broadening it to everything under the sun. Suhail Ahmed has a question. How can sustainable urban policies be designed so that they work for both high income and low income communities? मैं एक स्लाइड बीच में मैंने वो शॉर्टेज की वजह से सुबह काट दी थी. मैं एक इस पे बड़ा फोकस करना चाहता था कि when we talk of the human behavior and the citizens, it is not uniform, जैसे वो कहते हैं क्रिएचर. Within that, जो men की अलग citizens हैं, women अलग है, बच्चे अलग है, handicapped अलग है, and then minorities, then students and blah blah blah. So वो मेरा एक सेक्शन रह गया. He is very right कि actually citizens सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, and we have to design the city for everyone. अब मुझे बताइए कि जो बेचारा व्हील चेयर पे है वो ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ऊपर से कैसे क्रॉस करेगा? सो बेसिकली व्हील चेयर वाले के लिए है ही नहीं कि वो सड़क क्रॉस करे, वो जिस ज्यादा वो उसी साइड पे मर जाए. तो दिस ऑल कंपोनेंट्स और ये सारी चीजें हम चूंकि सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमने सिटीजन के बारे में सोचा ही कभी नहीं. टू बी ऑनेस्ट, मैं 30 साल हो गए यही देखते. हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सोच लेते हैं. नेवर थिंक ऑफ द सिटीजन कंफर्ट. Thank you. Dina Ali has a question. Sir, as you said that society or people involvement is necessary, what can be done for awareness and involvement of common people? What can be done? Another example What can be done for awareness and involvement of common people? जी, मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं कि वो जो चौकीदार था उसने कहा जी अगर मेरे से पूछते तो ये स्टैचू बनाने की बजाय क्रॉसिंग बनाते ताकि लोग मरे नहीं. दिस इज द बेस्ट वे टू इन्वॉल्व द पीपल कि जिस वक्त प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा होता है तो उसके जो बेनिफिशियरीज या स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछें कि जी आप क्या चाहते हैं. और सेकेंडली सिर्फ अवेयरनेस काफ़ी नहीं है. मैंने कहा दिस हैज़ टू बी अ बिहेवियर चेंज, और वो अवेयरनेस कैंपेन और हफ्ता सफाई और बैनर्स लगा देना इज यूजलेस. इट हैज़ टू बी परसिस्टेंटली. एंड जिसका भी ये क्वेश्चन था, आई वुड रिकमेंड हिम और हर कि जी स्लाइड्स दोबारा अच्छे तरीके से गौर से पढ़ लें. आई एम श्योर इसका आंसर मौजूद है स्लाइड्स में. थैंक यू. So Muhammad Junaid has a question. NGOs or organizations like RAP in the UK are using behavioral change approaches to promote sustainability. Why don't we see more organizations in Pakistan working specifically on behavioral change for sustainability?
देखिए जी, एनजीओ जो चीज़ है वो बड़ी अजीब एक डूबिया सी चीज़ है। एनजीओ जो है वो कोई खुदाई खिदमतगार नहीं होते। एनजीओ को भी पैसा चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, और एनजीओ वही काम करते हैं जिसके लिए उनको पैसा मिलता है। तो जिन एनजीओ को एक यूके में बात हो रही है या दूसरे बहुत से मुल्कों में, उनको जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो पैसे देती हैं फ्रॉम देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर फंडिंग से, और वो इसी काम के लिए देते हैं कि आपने इनको शहरियों को ये सिखाना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आप देख लीजिए एनजीओ जिनको जो स्पॉन्सर कर रहा होता है तो सिर्फ उसी के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। अदर देन दैट दे डोंट हैव एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डू एनीथिंग। और बहुत सी एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी ये नहीं कर रहे हैं। Abdullah Hanif has a question. What psychological factors influence people's willingness to use public transportation instead of private vehicles? देखिए जी, अगर तो मुझे आसान लगेगी और मेरी कंफर्ट का ख्याल होगा और मेरे लिए डिज़ाइन हुई है तो मैं यूज़ करूँगा। एग्जांपल है ऑरेंज ट्रेन जो पंजाब लाहौर में चलती है। अब ऑरेंज ट्रेन मैं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे घर से उस पहला स्टेशन जो है वो 4 किलोमीटर दूर है। मैं वो कैसे जाऊँ 4 किलोमीटर? और जहाँ पे मैं उतरूँगा वो मेरे ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर है, मैं वो 3 किलोमीटर कैसे जाऊँगा? तो इसको कहते हैं कि लास्ट माइल और फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। और इसी वजह से अभी भी 50 to 60% यूज होती है, 30 to 40 खाली जाती है, बिकॉज हमने बना तो दी है लाइन, लेकिन वो कैसे लोग वहां तक पहुंचेंगे और वहां से उतर के कैसे पहुंचेंगे। और माल रोड पे अगर आप देखें जीपीओ वाला स्टेशन, तो वो बैंक मेन रोड के ऊपर बस स्टॉप बना हुआ है। बंदा उतर के, मुझे तो अभी तक कह रहा था कि लोग जिंदा कैसे हैं वहां पर उतरते साथ तेज गाड़ियों में से कैसे निकल आते हैं। सो बेसिकली अगर हम कन्वीनियंट करेंगे, अफोर्डेबल करेंगे, मैं जरूर वो यूज करूंगा। मेरे दिमाग खराब है कि मैं इतनी महंगी गाड़ी निकाल के इतना महंगा पेट्रोल डलवाऊं, लेकिन अगर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं तो फिर मजबूरन मुझे भी गाड़ी लेना पड़ती है। So the next question is from Suhail Aslam. What is the good way of giving awareness to everyone and how can it be made effective? देखिए जी, अवेयर सारे हैं, मैं फिर वही कहता हूँ, सब अवेयर हैं। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू डू इज नॉट अवेयरनेस, व्हाट वी नीड टू डू इज टू चेंज देयर बिहेवियर फ्रॉम इंटेंशन टू मोटिवेशन। सबको पता है सफाई अच्छी चीज है, सबको पता है ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं करना, सबको पता है पानी बचाना चाहिए। भाई हम उनको मजबूर कैसे करें कि उनका बिहेवियर चेंज हो? दैट इज द रियल प्रॉब्लम। AI has a question. Sir, how can we align our local government systems at grassroots level? Do you support local body elections and establishment of new units, provinces for betterment of civic services? I think your local bodies or yes, Saraja, this is not a topic for today. It's a big enough topic in itself. So I will pass this question. This is not related to today's topic. Okay. So we have reached to the conclusion of our session. Dr. Nasir, thank you so much for such a detailed and practical session. I know I personally learned a lot, so did everyone else. So before we conclude today's session, I would like to share an exciting opportunity with you. Climentra has launched a series of professional training programs held every Saturday from 11 to 1 p.m., covering topics such as sustainability, ESG, HSE, climate change, carbon management, and many more. Our next training program is now displayed on your screen. It will be held on Sunday, 29th of August, 2026 from 11 a.m. to 1 p.m. on pursuit of sustainable future global growth, urgent to choose circular economy features. We invite you to join us for this insightful session. To register and stay updated on our upcoming trainings, visit www.climentra.com or follow our page on LinkedIn. Registration links for all our training programs are available there. Don't miss this opportunity to learn from industry experts, expand your professional network, and get your question answered directly by experienced practitioners.
You can also join our WhatsApp community to receive training announcements, registration links, meeting links, internship opportunities, and other updates. The WhatsApp community link has been shared in the chat box. Please join to stay connected with Climantra. Thank you once again for joining us today. We hope to see you in the upcoming sessions. Have a wonderful day. Now, I would like to hand over this session to Ma'am Sadia Server so that she can thank Sir Nasir Javed for such an insightful session. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Giving me this opportunity. Sorry. Thank you very much, Dee. Thank you for giving me this opportunity. I also learned a lot. I enjoyed this session. I always enjoy talking to young people. A special thank you to Sir Nasir Javed for every single word, for your time and knowledge and wisdom. Everything you shared during the session was truly valuable and meaningful for us. Although online session have their own limitation, the session was highly effective, engaging, and insightful. We sincerely appreciate the effort you put into making the session so informative and worthwhile. Thank you once again for sharing your expertise with us. Thank you. Thank you, everyone. You can leave the meeting now.